close this session, and I invite Amitabh Thakur Bhaiya to join this. And basically, I'm giving you, this is 6:35 now, so you have 1 hour time, Bhaiya. And we want to again learn from you, as you know that people is also embarking upon entrepreneurship activities related to our watershed, and this is all linked to how we make this watershed more sustainable, and we reach out to the community while taking care of our river, while rejuvenating our river. So this is the whole idea. For everything, the river, Champa River is central to everything, and around this we want to start a sustainable venture, basically. So this is something which we would learn from you. We would like to learn from you, especially because this is for the viewers, for the participants in this workshop. Amitabh ji has been engaged in a very sustainable business based in Bhagalpur. This was a kind of a learning, and what we are planning, we got some kind of courage to begin what we have in mind after seeing his venture. We tried thinking about that yes, something sustainable can begin from there. And the best part, what I like in his project Gamcha, is how the artisans are being treated. When you see, this is a textile town, Bhagalpur is a textile town, and if you go out and you see the conditions of the handloom workers, you will feel, why are they working in this sector at all? And there's no wonder why the generations later than the current generation who are working on this, they do not want to get into this. It is such a non-remunerative field where they are working, they're really working hard, and they're not getting any returns. So when we see how the project Gamcha is paying their workers and how their work is given importance, I feel that this is something which can be replicated, and this is something which, how do you say that, the fair trade thing. I have seen the Body Shop model of working, the Body Shop, the cosmetic brand, where again, this is what I understand, that the workers, the people who are connected to it are paid really well for the work they do. So this is the understanding that we have. And this is something which we would like to implement here. So want to learn something like this from you. आप जो बोले ना उसी से शुरू करते हैं. स्ट्रक्चर तो है मेरे पास एक, लेकिन आप बोले ना कि वो क्यों इंगेज्ड हैं अभी भी इसमें, तो उसका तो दो कारण है. एक तो जो अनुपम जो पहले बोल रहे थे कि कोई अगर मछली मार रहा है या मछली का काम कर रहा है, उसको अचानक से बोलिए कि बकरी पालो, तो वो नहीं करेगा. तो कहीं ना कहीं वो जो वीवर है वो अब उसको ईंट डालने बोलिएगा तो वो तो नहीं करेगा, वो वीविंग का ही काम करेगा, है ना. अब उसके लिए आप उसको पैसा दीजिए या नहीं दीजिए. और दूसरा है जो कोई भी काम जो सृजन का है, जो सृजनात्मक है, जो आप कोई चीज आप बना रहे हैं, जो सेटिस्फैक्शन उससे जो मिलता है, वो आपको शायद अचानक से कोई नया काम कीजिएगा तो आपको उतनी समझ भी नहीं होगी कि ईंट बनाने से एक बिल्डिंग बनती है, या तो वहां दूर तक आप सोच नहीं पाएंगे जो आप एक अपना काम करके आपको जो मिलता है. हालांकि ये सवाल I'll come back to it. हम एक बार और इस पे थोड़ा सा 2 मिनट आपको बताएंगे कुछ इस पे. लेकिन हम सोचे कि पहले एक प्रेजेंटेशन है जो हम क्या कर रहे हैं भागलपुर में, वो दिखा दें आप लोगों को, थोड़ा फोटो, ताकि थोड़ा हमको भी देख के खुश हो जाते हैं. हम भी देखते हैं यहाँ पे तो लगता है कि यहाँ कुछ तो किए हैं हम लोग. तो हम शेयर कर लेते हैं स्क्रीन थोड़ा, 1-2 मिनट शायद लग जाए. 1 मिनट.
ये रहा। Give me a second. Give me a second, please. आप लोगों को दिख रहा है कुछ? नहीं? हाँ ना? नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं? नो सर। अब हाँ हाँ। अब कुछ दिख रहा है? यस दिख रहा है अब आपको? यस सर दिख रहा है। वेरी गुड, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको, जो आपका जो टाइटल था, जो इसको हम बदल के अब एकदम से क्या सिखाएं, हम ही सीख रहे हैं अभी, तो है ना। तो स्केलिंग अप एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वेंचर, तो इसमें फ्रैंकली हम बताएंगे आपको कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कितना है, क्या है, इसका स्टॉक हम लोग बहुत नहीं लिए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना पता है कि हम लोग कुछ बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का काम इतना एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग जो रंगते हैं वो ज्यादा, उसमें पानी वानी हम लोग फेंकते नहीं है बाहर, पेड़ पौधा में लगा देते हैं। तो जो पुराना तरीका है काम करने का, वही सी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पुराने तरीके में जो भी आपको इन्वायरमेंटल लगता है, सस्टेनेबल लगता है, वो आप लोग ज्यादा समझिएगा। बट ठीक है, हम लोग एक ऑडिट किए हैं अपना, और ऑडिट में एक बड़ी कंपनी थी, उसको हम लोग भेजे थे अपना रिपोर्ट। तो लोग कहा कि आप लोग सस्टेनेबल हैं। कोई सर्टिफिकेशन नहीं है हम लोगों के पास, तो जस्ट टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अवेयर, जस्ट टू बी। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग का गमछा है नाम, एक ब्रांड लाने की कोशिश है। शुरुआत इसका इस सवाल से हुआ था कि ये मूवी है, लेकिन अभी हम दिखाएंगे नहीं मूवी, बाद में लिंक भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब शुरुआत ये था कि लगा कि एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहां पे। बचपन से ही हम लोग, हम भागलपुर के ही हैं, हम 10th तक भागलपुर में ही पढ़े थे। तो हम 1987 में हम 1987 में हम भागलपुर से दिल्ली चले गए। तो 87 तक का तो याद भागलपुर का ही है। तो बचपन से ही था कि भाई वहां पे हैंडलूम का है, सिल्क का है, और ऑनेस्टली आप लोगों के जन्म से पहले ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था कि भाई भागलपुर के व्यूअर्स का तो कुछ नहीं होगा, वो खत्म हो जाएंगे, और कुछ करना चाहिए, सरकार कुछ करना चाहिए। और ये हम आज तक कभी ये नहीं सुने हैं कि बहुत ज्यादा भागलपुर से कुछ बहुत बिजनेस हो रहा है इस तरह का। हमेशा ड्विंडलिंग ही रहा है, मतलब जो जो मेरे एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दंगा हुआ 89 में, दंगा के बाद तो और भी ज्यादा लोग कहते हैं कि हालत खराब हो गई। तो एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम था जो दिखता था हम लोगों को, और एक हम लोगों को लगा कि एक पॉसिबल सोल्यूशन है इसका। और ये पॉसिबल सोल्यूशन यही है कि सामान को अच्छे से बना के और बाहर बेचने का, मार्केट एक्सेस का, है ना। और हम लोगों को लगा कि हम लोगों के पास स्किल्स है, रिसोर्स है, रिक्वायर्ड नेटवर्क है, बाहर पढ़े हैं, बाकी लोग मतलब दोस्त लोग हैं जिनको पैसे वाले हैं, लगा सकते हैं। मेरे पास भी कुछ पैसा था, हम लोग सब सोचे। और सबसे बड़ी बात है कि एक जगह थी हम लोगों के पास, जो मेरे पापा पहले एक छोटा सा वहाँ बिजनेस करते थे। तो हमको लगा कि वो जगह अब खाली पड़ा हुआ है, और हम अपने नाम पे उसको लेके और इस काम को आगे बढ़ाएं। तो ये तीनों का आप कहिए कि जब तीनों एक साथ मिला तो हमको लगा कि चलो प्रोजेक्ट डालते हैं इसको। तो अब
पूरा कहानी तो नहीं बनाई कैसे हम लोग स्कार्फ बनाना शुरू किए और हैंडलूम पे ही क्यों आए, इंडस्ट्री क्यों नहीं डाले। बहुत फिलोसॉफिकल डिबेट भी हुआ। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हम लोग को लगता भी था कि यार टेक्नोलॉजी कंपनी कुछ करेंगे, कुछ स्टार्टअप टाइप का कुछ, मतलब आजकल लोग ऐप को ऐप डाल रहा है और इसमें वैल्यूएशन कराता है, पैसा बनाता है, ये हम क्या हैंडल करने जाएंगे। ठीक है, तो ये सब भी दिमाग में आया था हम लोगों के, एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो आया था कि हम टेक्नोलॉजी कंपनी क्यों नहीं करें। उसके बाद हुआ ये कि हम लोग पहुंच गए एक मुकाम तक कि हम लोग स्कार्फ बनाएंगे और स्कार्फ को बेचेंगे। ठीक है, तो कहानी वहां से शुरू करते हैं। तो बेसिकली 3 सवाल हम लोग मतलब था कि सवाल कहिए या जो भी कहिए, स्टेटमेंट्स कहिए। पहला सवाल ये था कि हम लोग को लगा कि भागलपुर के व्यूअर्स को ज्यादा उसका जो मूल्य है, और मूल्य का मतलब दाम से नहीं जोड़ रहे हैं, प्राइस से नहीं जोड़ रहे हैं, वैल्यू से जोड़ रहे हैं। तो वैल्यू मिलना चाहिए लोगों को उस क्राफ्ट का, और वैल्यू तभी मिल पाएगा जब आप उस वैल्यू को बढ़ाएंगे और उस वैल्यू को शेयर करेंगे। तो अब $1 million क्वेश्चन हो जाता है कि इसको कैसे कीजिएगा, है ना। मतलब और शेयरिंग तो आसान है, क्योंकि अगर आप बेईमान नहीं है, हालांकि इतना आसान भी नहीं है, अगर बेईमान आप नहीं है और कहिएगा कि जो आप कमा रहे हैं उसमें आपका इतना बनता है हिस्सा दीजिएगा, तो आप वो काम तो कर सकते हैं। चैलेंज आता है कि वैल्यू कैसे बढ़ाना है किसी क्राफ्ट का, है ना। और वो वैल्यू के ऊपर बहुत डिबेट है, बहुत इकोनॉमिक लिटरेचर है, बहुत मार्केटिंग लोग उसमें गिमिक लगाते हैं और उसका परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, एक्चुअल वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए किसी प्रोडक्ट का। तो अब ये सवाल जब आया हम लोगों को, तो हम लोग बोले कि अच्छा, इसका मतलब है कि गमछा का जो स्कार्फ है उसका कंटेंट जो है प्रोडक्ट का, वो कहानी है, स्टोरी। भागलपुर का जो ट्रेडिशन है, वहाँ की जो परंपरा है, अब जैसे भी शुरुआत हुई हो उसकी, कई लोग कहते हैं कि काफी समय से है, और मुगल साम्राज्य में हुआ, उसके पहले भी हुआ, तो वो अब कहीं ना कहीं एक थोड़ा बंद कथा भी हो गया है। पर ठीक है, दिखता है, 200-300 साल तो कम से कम दिखता है। अगर आप पूछताछ कीजिए लोगों से तो लोग बोलेंगे कि हाँ, दादा के दादा भी करते थे ये काम। और तो एक ट्रेडिशन है वहां पे, खाली परसेप्शन ही नहीं है। हालांकि अब ज्यादा परसेप्शन रह गया है, बट ट्रेडिशन भी था। ठीक है, तो अब वो ट्रेडिशन है वहां का यान। पहले शुरुआत में तसर का बड़ा था, और तसर स्पन सिल्क मिल था वहां पे। जो आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ साहिबगंज पर, तो झारखंड में चला गया, वहां पे एनिमिस्ट ट्राइब थे, है ना, हैं अभी भी, जो पेड़ को पूजते थे। तो अर्जुन का पेड़ जो है उसको पूजा जाता था, उनके कल्चर में वो एकदम से एम्बेडेड था। अब उस कल्चर से वो इतना जुड़े हुए थे कि उसके कारण वो तस्सर का जो 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 उत्पादन होता था, वो उनके उनके संस्कृति में था, उनके कल्चर में था। ठीक है, वो यान फिर चाइना से आने लगा और कोरिया से आने लगा, और धीरे धीरे जो है वो भी खत्म हो गया। स्पन सिल्क मिल बंद हुए हमको लगता है 25-30 साल तो हो ही गया, नहीं अगर ज्यादा नहीं हुआ। हम स्पन सिल्क मिल जाके देखे भी हैं, अगर आप देखिएगा तो वहां तो अब शायद कोई मशीन अब काम चलाने लायक बचा भी नहीं है। खैर, फिर भी एक हिस्सा है कहानी का। कहानी क्योंकि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से आसाम भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मालदा दूर नहीं है ना। तो यहाँ से लगता है कि ठीक है, आसाम से भी हम लोग ला सकते हैं, अगर यान या मालदा से ला सकते हैं, थोड़ा बहुत भागलपुर से ला सकते हैं, तो हम लोग उसको स्टोरी में डालेंगे। फिर हम लोग लगा कि डिजाइन जो है हम लोग डिजाइन करेंगे, और डिजाइन पे बहुत लर्निंग हुआ हम लोगों का, बहुत लर्निंग हुआ। क्वालिटी सस्पेक्ट था थोड़ा, बट क्वालिटी जो है उस पर हम बहुत चिंतित नहीं थे। क्वालिटी जो है वो फंक्शन, एक कोई भी इंडस्ट्री आप लीजिए, क्वालिटी लर्निंग कर्व होता है। तो कितना भी कोई परिपक्व वीवर क्यों ना रहे, कितना भी कोई मतलब खेला हुआ खिलाड़ी क्यों ना रहे, उसको थोड़ा तो लर्निंग कर्व होता है स्टेज। तो हम लोग भी सोचे ठीक है, लर्निंग कर्व से हम लोग भी सीखेंगे, क्वालिटी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कितना समय लगेगा उसमें थोड़ा हम लोगों को जजमेंट में, ऑब्वियसली हम लोग सोचे जल्दी होगा, थोड़ा देर लगा। ये लेते हुए हम लोग बोले कि इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो एक ब्लैक बॉक्स बीच में है, ब्लैक बॉक्स ऑफ नॉलेज, मतलब वो ज्ञान का एक उसको कहिए कि वो काला डब्बा जिसमें दिखता नहीं है कि क्या है, उसको हम लोग खोलने का कोशिश किए। बिजनेस स्कूल में जाके कितने लोगों से बातचीत करके, मेरा खुद का अपना नॉलेज जो भी थोड़ा बहुत है उसको डाल के, तो थ्योरेटिकल तो
बड़ा क्लैरिटी रहता है, लेकिन उसको जब आप लाइए रियल लाइफ में तो थोड़ा वो चैलेंज हो जाता है। ठीक है, वो चैलेंज तो हम जो कह रहे थे अनुपम को कि वो ह्यूमिलेटिंग, थोड़ी सारी ह्यूमिलेटिंग भी है, एक तरीके से ह्यूमिलेटिंग भी है, गलत शब्द नहीं है, लेकिन ज्यादा हमलिंग, मतलब कि मतलब पता चल गया कि आप जो जानते हैं वो कभी कभी बहुत ज्यादा नहीं होता है उसमें, मतलब लाइफ आपको और कुछ ज्यादा सिखा देता है। तो ठीक है, वो ब्लैक बॉक्स को खोले जब हम लोग, तो हम लोग को लगा कि उसमें 4-5-6 एलिमेंट्स हैं। प्राइसिंग का है एक एलिमेंट, चैनल्स का है, सेगमेंटेशन का है, कहाँ पे पोजीशन कीजिएगा, मतलब कि किस इंसान, किस तरह के इंसान को ये बेचिएगा आप, उसको बताइएगा कैसे, कम्युनिकेशन कैसे कीजिएगा, पैकेजिंग किस तरह का करेगा, लेबल कैसा लगेगा, है ना। और ये सारा कुछ बजटरी कंस्ट्रेंट में रहते हुए कि एक तरीके से इम्पैक्ट फंड है, क्योंकि आप अपने जेब से लगा रहे हैं। मेरे केस में तो मतलब बीवी से लड़ाई भी हो जाता है मेरा पैसा जब लगाते हैं इसमें। कभी कभी वो जर्मन है, उसको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, जब तक वो भागलपुर गई नहीं थी। एक बार गई तब जाके उसको समझ में आया कि अच्छा ठीक काम कर रहे हैं। तो इस तरह का चैलेंजेस रहता है कि ना, मतलब स्टेक होल्डर्स आपके रहते हैं लाइफ में। आप जब एंटरप्रेन्योर बनिएगा तो बाकी लोग रहेंगे, इसलिए यंग एज में एंटरप्रेन्योरशिप आसान होता है, थोड़ा लेट एज में दिक्कत होती है। तो उसमें ये होते हुए कि बजट कंस्ट्रेंट में ये सारे चीजों को एक 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 इस लेवल तक कैसे ले जाइएगा कि आपका प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाए, मतलब कि प्रोडक्ट जो है ऐसा दिखे कि वो एक टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट है। टॉप क्वालिटी का मतलब ये कि बहुत महंगा वो लोगों को खरीदने में हिचक ना हो। ठीक है, तो ये सब करते करते हम लोगों को बहुत देर लग गया। ये ब्लैक बॉक्स जो है अभी भी हम लोगों का पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। तो वही इसलिए हम अनुपम से वो पूछ रहे थे मार्केट एक्सेस पे। वो मेरा सवाल जो था वो बड़ा ऑनेस्ट था, एक समझने के लिए। हम जहां भी कोई कहता है मार्केट एक्सेस की बात करता है तो हम जरूर उससे सवाल पूछते हैं। सेल्फिश है एक तरीके से। अब आपको हम दिखाते हैं कि प्रोजेक्ट हम लोगों का लगता कैसा है। ये है हम लोगों का प्रोजेक्ट भागलपुर में। ठीक है, और हम जानबूझ के भी नहीं दिखाए हैं कि पहले कैसा लगता था, कहीं ना कहीं है वो फोटो। तो इसको करने में हम लोगों का बहुत मेहनत लगा है, बहुत मेहनत लगा है, मतलब और ये जो आप देख रहे हैं साफ सुथरा, ये सिर्फ एक इंसान का मेहनत है। वहां पे वासु है, नाम उनका अशोक है, लेकिन वो मेरे पापा भी अशोक है तो उनका नाम बदल के वासु कर दिया गया। तो जो होता है बिहार में, हमको अभी भी समझ में नहीं आता है क्यों। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसकी वाइफ का नाम ललिता और मेरी माँ का भी नाम ललिता है, तो अब अशोक ललिता दोनों का नाम बदल दिया गया है। हाँ, तो यही सब थोड़ा है वहां पे फ्यूडल टाइप का एटीट्यूड, लेकिन हम तो अशोक ही बोलते हैं उसको। ठीक है, और पापा के सामने तो जानबूझ के बोलते हैं। कि तो ये हम लोग प्रोजेक्ट है। आप देखिए हम वहां पे जाके रहते भी हैं। पिछले साल हम वहां पे इसी फैक्ट्री में हम 30 दिन रहे थे। वहीं पे हम वहीं सोते थे, वहीं हम नहाते वहाते, वहीं सब चीज, खाना वाना मेरा वहीं होता था, सब चीज। ठीक है, तो ये फैक्ट्री है, ये दिखता है ऐसा, साफ सुथरा है, लोगों को मन लगता है वहां काम करने में। रानी गई हुई है। ये ऊपर से हम लोग जानबूझ के दिखाते हैं कि देखिए हम लोग थोड़ा अलग है। हाँ, ये हट के है थोड़ा। तो ये मतलब थोड़ा इस मेरा स्टूडेंट लोग गया था वहां पे, तो वो लोग ऊपर से हवाई से वो क्या ड्रोन से फोटो लिया था इसका दिखाने के लिए थोड़ा। ये वहां पेड़ पौधा है जो दाई एक तरह आपको जो वो पत्ता दिख रहा है वो कैस्टर है, उसी का उसी पे जो कीड़ा होता है, जो कैटरपिलर होता है, उसी का एरी सिल्क बनता है। हम लोग देखिए लैक ऑफ नॉलेज क्या होता है कि उस पे जो कीड़ा लगा था, तो उसको वासु जो है वो पेड़ काट के फेंक दिए, बोले कि अरे तो कीड़ा लग गया है। तो हम बाद में उसको उनको पता है कि कीड़ा इसलिए लगा कि उसका घर है। तो हम लोग को रखना है एक कीड़ा, तो अब कीड़ा आपको वहां दिखेगा। ये बहुत सारा पेड़ मर गया हम लोगों का क्योंकि बाढ़ आ गया था वहां। लेकिन वो आदमी ऐसा है, बड़ा कर्मठ है, वो हर बार नया से शुरू करता है, हर बार। और हम लोग कोई भी इसमें खाद वाद बाहर का यूरिया वूरिया कुछ नहीं डालते हैं इसमें, बस एकदम से ये नेचुरल है। और आइडिया है कि ये जो अनार आप देख रहे हैं ये हम जानबूझ के लगाएं क्योंकि इसका हमको रंग बनाना है कभी ना कभी। ठीक
ठीक है, तो ये सीख रहे हैं हम लोग। अभी तो हम लोग बनाते नहीं है, रंग खरीदते हैं, नेचुरल खरीदते हैं, वो आपको बताएंगे थोड़ी देर में। ये हम लोगों का प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये कोई मॉडल वॉडल नहीं है हम लोगों का। हम लोग का सब काम फोटोग्राफी से लेकर सब काम इन हाउस काम है। और ये जानबूझ के हम लोग इन हाउस किए हैं, दिखाने के लिए कि जो फाउंडर है वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, और ताकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जब एक बार बिकने लगेगा खूब सारा, या अच्छे से जब उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तब हम लोग हायर करेंगे प्रोफेशनल लोगों को। ठीक है, ये प्रोडक्ट हम लोगों का, ये देखिए, ये आपको कलर अगर आपको पता चल रहा है तो देखिए, कलर हम लोग वहीं पे बनाते हैं, सब चीज वहीं होता है कलर वाला। ये हम लोग का प्रोडक्ट्स है। ये एक और, अब ये हम जानबूझ के डाले हैं इसमें कि इसमें इन्वायरमेंटली क्या डैमेजिंग होगा, इसमें तो कलर है ही नहीं, तो खाली यार्न है। तो उस खाली यार्न के प्रोडक्ट को भी हम लोग जो है थोड़ा सा रंग डाल के बना के बेच सकते हैं। तो कल को रंग हम लोगों को, लोग कहता है कि वो नेचुरल कलर में मतलब स्टेबल कलर नहीं होता है, वेरिएशन हो जाता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में। तो हम कहते हैं ठीक है, नेचुरल यार्न ही लगा दीजिए, छोड़ दीजिए कलर। वहां का प्रोडक्ट जैसे मूगा सिल्क है असम में, जिसमें डाइंग आप बहुत मुश्किल से कर पाइएगा, तो मूगा का पीलापन जो है वही उसका अट्रैक्शन है। तो उसी तरीके से एरी सिल्क का जो ये कोर्सनेस है, ठीक है, वो इसका इसका ट्रेडमार्क बन जाएगा, है ना। तो ये हम लोग ये वाला हम लोग बेच भी रहे हैं। ये थोड़ा और प्रोडक्ट दिखेगा। ये मंजर भाई हैं जो मतलब तो इसको हम लोग थोड़ा ऑटोमेट करने वाले हैं, थोड़ा काम बढ़ेगा हम लोग का, तो ये सब प्रोसेस ऑटोमेट कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा मेहनत का काम है। और ऑटोमेशन का मतलब ये कि नहीं कि वो हाथ से नहीं चलाएंगे, हाथ से ही चलाएंगे, क्योंकि उन लोगों को मन भी लगता है, और थोड़ा वही जो हम बता रहे थे आपको कि किसी भी सृजन कोई भी चीज करने में उन लोगों को आनंद आता है। तो इसको हम लोग ये करेंगे कि एक मशीन अभी हम देखे हैं जो कि एक बार चरखा चलाने से 10 स्पिंडल जो है बना, 10 बर्न जो है वो बना देता है। वहां पे इसको नल्ली कहलाता है ये। तो नल्ली जो बना रहे हैं, ये नल्ली को 10 नल्ली को एक बार में बना सकते हैं, 5 नल्ली बना सकते हैं। तो वो सब हम लोग अभी करेंगे थोड़ा बहुत। ये लोग इन्वॉल्व हैं, हम आई विल नॉट अपोलोजाइज, प्रीडोमिनेंटली मेल लोग, मेल प्रीडोमिनेंटली क्या, ओनली मेल टीम है, ठीक है। तो हम अपोलोजाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां का जो रीत है वही है, तो हम बहुत ज्यादा बदल नहीं रहे हैं उसमें। सब लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ लोगों का पैसा लगा है, कुछ लोगों का श्रम लगा है, कुछ लोगों का आइडिया है, कुछ लोगों का काम है। सब तरह के लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ये अभी के लोग हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ गए हैं। ये जो बाईं तरफ जो नीचे में टोपी पहना हुआ एक इंसान है, वो एक आर्किटेक्ट है, मेरे बचपन का दोस्त, भागलपुर का ही है, न्यूयॉर्क में था, अभी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में पढ़ाता है। और ये इसी का पूरा योगदान है वो जगह को ठीक ठाक करने में। और ये मेरे दोनों विद्यार्थी जो वहां गए थे, ये हम लोग भी थोड़ा मॉडलिंग कर रहे हैं इसमें यहाँ पर। ये टाइम लाइन है, 2014 से शुरू किए थे हम लोग। तो अनुपम की एक बात और उनको अच्छी लगी जब वो कहे कि भाई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचिएगा कि आज बनाए और कल मार्केट एक्सेस मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। हम लोग काफी हम लोग का स्कार्फ काफी बड़े बड़े लोग पहन रहे हैं, लेकिन इसके कारण जो है, या उसके खाली उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि स्कार्फ बिकने लगा है। बहुत बहुत मेहनत पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ रहा है। मतलब धीरे 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 5-6 साल लग गया हम लोगों को प्रोडक्ट को ठीक करने में, पूरा एक समझने में कि क्या वहाँ स्किल का लेवल है, परसेप्शन क्या है यहाँ पे लोगों का। डिजाइन पे जैसे हमको शुरू में लोग बोल दिया कि नहीं, डिजाइन ये जो तुम लोगों का है वो डिजाइन वहां नहीं चलेगा, जो गलत था। कोई जरूरत नहीं है किसी डिजाइनर का, एकदम सिंपल डिजाइन बनाइए, प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। जो 400 साल पहले डिजाइन चलता था वो अभी भी डिजाइन है। तो वो क्यों है, वो हमको समझने में थोड़ा लगा, किताब पढ़ना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा, काफी सारे म्यूजियम के क्यूरेटर से गए, जाके मिले, उनसे बात की, पूछे। बहुत बड़े बड़े ब्रांड
हम जिस बिजनेस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ काफी बड़े बड़े ब्रांड के सीनियर लोग वहाँ पढ़े हैं, यहाँ उनसे संपर्क किए, जाके मिले उनसे। शुरू में थोड़ा एरोगेंटली जाते थे, बाद में काफी हम्बल हो गए जब पता चला कि हम लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है। अब काफी हेल्प मिलने लगा। तो धीरे धीरे ये सारा लर्निंग जो है अब प्रोडक्ट में दिखता है। और ऑनेस्टली जब हम भेजते हैं प्रोडक्ट पैक करके, अभी तो खुद ही करते हैं, खुद से आयरन करते हैं, खुद से सामान को डाल के इसमें करके। और ये साइड का काम है मेरा, इसमें अपने बेटी को इन्वॉल्व करते हैं। 14-15 साल की मेरी लड़की है, उसको बोलते हैं तुम सीखो थोड़ा काम। तो तो थोड़ा मतलब अब कितना करेगी, लेकिन हाँ मतलब उसको भी इंटरेस्ट है इसमें, तो उसको घूस देते हैं। तो स्कार्फ कभी अच्छा वाला उसको पकड़ा दिए कि तुम स्कार्फ पहनो ये वाला। तो शुरुआत हम लोग का 2014 से कहिए एक तरह से हुआ था। काम शुरू करते करते हम लोगों को 2015 2016 हो गया। 2016 में हमको लगता है पहला बार हमको लगा कि ये प्रोडक्ट जो है एक्चुअली हम यहाँ पे यूरोप में बेच सकते हैं। यहाँ पे हम किसी बैंकर को बोल सकते हैं कि आप जो एक बहुत फेमस ब्रांड है यहाँ ब्रूनो कुचिनेली, इसका स्कार्फ बहुत महंगा बिकता है, उसके टक्कर में हम लोग आ सकते हैं, हमको लगा। तो जब वो लगा तो फिर हुआ कि विश्वास हुआ प्रोडक्ट पे, फिर हम लोग और पैसा डाले इसमें। बाकी जो जो फाइट होता है वो तो चलता ही रहा। कभी लोग छोड़ के जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी किसी को मनमुटाव हो रहा है, कोई एक आपस में ही लोग नहीं संभाल रहे हैं। तो जो होता है, जो किसी भी जगह पे काम कीजिएगा आपको परेशानी होगी, वो हमको भी हुई है। वहां गए, अगर किसी को कुछ कह दिए, हम ही से गलती हो गई, तो काफी इस तरह कई चीज चला। यहाँ पे एक फोटो आपको दिखेगा छोटा सा, जो दिखाएगा कि पहले कैसा दिखता था। उसमें सांप वाप थे, उसमें काफी कुछ साफ सफाई करके हम लोग जो है इसको की शुरुआत ना। ये हम लोगों का एनवायरमेंटल एक ऑडिट है, कह लीजिए कि हम लोग पांच क्राइटेरियन पे हम लोग जो है वो ग्रीन हाउस क्या होता है, पोल्यूशन कहाँ हम लोग करते हैं, वाटर कंजम्पशन क्या होता है हम लोगों का, वाटर पोल्यूशन क्या करते हैं, लैंड यूज कैसा है। तो ये सब देख के ये सब लोग उसमें बताए कि पांचों में हम लोग कोई बहुत ज्यादा हम लोग का डैमेज नहीं है, बहुत क्या हम लोग डैमेज नहीं करते हैं हम लोग जहाँ तक। तो ये रिपोर्ट जो है, हम लोग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक्चुअली ब्रांड नहीं है, वो होल्डिंग कंपनी है केयरिंग करके। तो केयरिंग में जो सस्टेनेबिलिटी का जो हेड करती है, वो मेरे बिजनेस स्कूल से पढ़ी है, तो हम लोग उससे कनेक्ट किए थे, तो वहां गए थे। लेकिन वही है, घूम फिर के बात वहीं पे आ गया कि यार ये आप लोगों का सिल्क जो है ना, वो थोड़ा हाई क्लास का नहीं लगता है ये। तो उन लोगों के दिमाग में वही सिल्क जो है वो अभी भी मलबेरी सिल्क है उनके दिमाग में, चाइना से आता है, क्रेप वाला। हाँ, तो कॉटन टाइप का दिखेगा तो सिल्क का उन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो भी हम लोगों को चैलेंज है कि प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए हम लोगों को बताना पड़ता है कि एरी सिल्क है क्या, एरी सिल्क है क्या। एरी सिल्क दिखता नहीं है लेकिन वो सिल्क है। तो उस पे हम आर्टिकल लिखे फिर कि सिल्क होता क्या है, सिल्क होता क्या है, सिल्क को डाई करना क्यों ज्यादा मुश्किल है, कॉटन से ज्यादा सस्टेनेबल क्यों हो सकता है, या कॉटन कहाँ से आया, सिल्क क्यों नहीं है। तो उसमें ये भी पता चला कि जो चीज जैसे मशीन का बना हुआ चीज जो है उसका अपना एडवांटेज है, उसमें जो इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है। आज जो हम लोग कपड़ा पहन पा रहे हैं वो इसलिए कि तकनीकी रूप से वो पॉसिबल हो पाया, इकोनॉमी ऑफ स्केल बन पाया उसमें। हैंडलूम से आप स्केल नहीं ला सकते। आप कभी नहीं कह सकते हैं कि हम मासिस को कपड़ा पहना देंगे, हम करोड़ों लोगों को कपड़ा पहना देंगे हैंडलूम से, जबकि वो गांधी जी का अलग बात था, वो कॉन्सेप्ट अलग था, कॉन्टेक्स्ट अलग था, सब चीज समय अलग था उस समय। आज की तारीख में हमको लगता है कि ये कंजर्वेशन का ही प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर बहुत ही हाई वैल्यू, बहुत ज्यादा मूल्य का, जो एक शब्द में या एक लाइन में नसीम भाई जो हम लोगों के प्रोजेक्ट के मतलब आप फाउंडर कह लीजिए, उनको पहला वीवर वही थे, वो हम लोगों को बोले थे कि सर खरीदार मत ढूंढिएगा, कदरदान ढूंढिएगा। ठीक है, वो बात ना ही वो समझ में उनको आ गई थी ये बात
तो ये बोल बोल के थक गए हैं हम लोग। एक कोई आपको मिनिस्टर कोई एक हैंडलूम का पहन लेगा और हम पहला चीज वही सवाल पूछते हैं, दाम कितना दिए थे इसका। खाली 5,000 का साड़ी पहन लेने से नहीं सॉल्व होगा, 50,000 देना शुरू कीजिएगा तब सॉल्व होगा प्रॉब्लम। 5,000 से नहीं चलेगा, 5,000 में तो नहीं कर पा, उसका घर नहीं चलेगा। अभी हम सवाल एक ही पूछते हैं, एक आदमी मेरा दोस्त है जो भागलपुर से सामान खरीदता है, बोले अभी न जो बंद हुआ उसमें पैसा दिए तुम लोग, तनख्वाह दिए लोगों को। अच्छा ये भी नहीं कि चैरिटी से आप तनख्वाह दे रहे हैं, आपका बिजनेस क्या सस्टेनेबल है कि आप उसको दे पाइएगा पैसा इस बंद के समय में, क्योंकि इकोनॉमिक रीजन है ना। किसी को खुश होकर आप पैसा दे दीजिएगा, वो एक बार आप दीजिएगा, 2 बार दीजिएगा। कंपनी से कमाया हुआ, खुद का अर्जित किया हुआ उसका जो पैसा वो कंपनी से निकालेगा, जब उसको अपना सैलरी उससे मिलने लगेगा, जो आपका मूल्य है, जो आपको दाम मिल रहा है, उससे जब सैलरी दीजिएगा तब सस्टेनेबल होगा ना। तो उसमें क्या होता है, जो हम आपको 2 आर्टिकल का लिंक देंगे जो आपको हम लिखे थे, और आप लोगों को इंटरेस्ट तो पढ़िएगा। उसमें एक रानी थी वहां पे, जो वो टेड का एक टॉक हुआ था, उसमें हम बोले थे जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उसमें हम बात यही करना चाह रहे थे कि एक्सटर्नैलिटी होता है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब सिंपल टर्म्स में बड़ा सा ये होता है कि जो अगर आपको कोई चीज का पैसा नहीं देना पड़े और कोई और भुगत रहा है उसका, आपका किया हुआ था, है ना, तो नेचुरली आपको पता भी नहीं चलेगा कि दाम जो है इसका वाजिब क्या है। अब जैसे वहां पे कोई घर में आपका 2 घंटा काम करता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे बाद में हम लोग को आया, जैसे कि माँ बाप क्या कोई काम करने वाला घर में है, तो हम बाद में सवाल पूछते थे हम कि भैया इसको छुट्टी वुट्टी नहीं मिलता है, इसको मतलब छुट्टी का आप इसको देते हैं कि नहीं, मतलब शामों में सिनेमा वगैरह देखने का इसका मन करेगा कि नहीं करेगा। तो द पॉइंट बीइंग कि ह्यूमैनिस्ट प्रिंसिपल होना चाहिए। जैसे हम ही नौकरी कर रहे हैं और हम ही को अगर बोलेगा कि तो आप शनिवार भी यही रविवार भी, तो हम बोलेंगे भाई मतलब ऐसे कैसे चलेगा। सस्टेनेबिलिटी वहां भी है। तो वो एक्सटर्नैलिटी जो होता है ना, कि किसी और पे आप थोप रहे हैं दाम, ठीक है, वो वो सस्टेनेबल नहीं हो सकता है बिजनेस। तो जैसे इन्वायरमेंटल, जो अनुपम बता रहे थे कि इन्वायरमेंटल ऑडिट का जब आप पूछते हैं कि इन्वायरमेंट का कि ना इन्वायरमेंट को कैसे आप लोग जो है कैसे आप उसमें मिटिगेट कैसे कर रहे हैं वो रिस्क को, है ना, तो वो मिटिगेशन जो है एक ठीक है टॉप लेवल पे तो आता है, आप समझ रहे हैं, लेकिन वो तो छोटा छोटा कंपनीज उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। और छोटा छोटा कंपनीज जो है या छोटा छोटा व्यवसाय जो है वो नाला गंदा करता है। जैसे चंपा का नाला नीला भागलपुर के सिल्क इंडस्ट्री से हुआ है, वो रानी को पता है, रानी को बताई है, तो वो क्यों, वो जो खरीद रहा है वही उस पर रिस्पॉन्सिबल हो गया ना। पर खरीदने वाले को पता भी नहीं है कि जो 50 रुपए में वो चीज खरीद रहा है उसका काला रंग कहाँ से, इंडिगो वहां केमिकल से कैसे बन रहा है, वहां पर काला रंग वहां पे एसिड डाल के कैसे बना रहे हैं। और हम लोग जब इंडिगो बनाते हैं तो हम लोग अगर 2,000 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए का यार्न है तो 3,000 रुपए हम लोग का इंडिगो में खर्चा हो जाता है, तो 8,000 9,000 का हम लोग का यार्न हो जाता है पूरा मिला। तो उसका जो हम लोग बनाएंगे तो उसका कोई कीमत देगा ना, उसकी कीमत कौन देगा, वो सस्टेनेबल कैसे हम लोग करेंगे। जब तक उसका उसका जब तक कदरदान नहीं मिलेगा हम लोगों को, तब तक हम लोगों को वो उसका मूल्य नहीं मिलेगा, उसका वो उचित दाम नहीं मिलेगा। तो नसीम भाई का ये बात हम हर जगह बोलते हैं कि हम ना, मेरा प्रोजेक्ट जो है कदरदान को खोजने में निकले हुए हैं हम लोग, और कदरदान धीरे धीरे मिल रहा है हम लोगों को, एक यहाँ मिलते हैं, 2 वहां मिलते हैं, 4 वहां मिलते हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई बहुत सस्टेनेबल चैनल नहीं मिला है, क्योंकि इंटरमीडियरीज जो हैं, जो बीचवनिया जिनको कह लीजिए, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे जो भी हो गया, उसमें बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है कस्टमर लाने के लिए। तो अब ये हो गया कि एक बार अगर कस्टमर आपके पास आ गया तो स्कार्फ के अलावा और आप क्या बेच सकते हैं, ताकि आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है बेचने का वो कम हो जाए, तो उसमें इकोनॉमिक्स का फिर बात होने लगता है, और ये है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान देते हुए हमको लगता है कि जो नसीम भाई का जो बात है कदरदान वाला, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगरबत्ती बना रहे हैं अगर, तो अगरबत्ती बना रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं तो उसका कैसे उसका वैल्यू को बढ़ाया जाए। और वैल्यू जो है वो कस्टमर के परसेप्शन पे होता है या कस्टमर के एंड यूज पे होता है, ठीक है। अगर
मेरे बाबूजी को बेचिएगा अगरबत्ती तो बहुत पैसा देंगे आपको, उनको इतर बेचिएगा तो बहुत पैसा देंगे, क्योंकि पूजा पाठ करते हैं उसमें उनको भगवान का ये चाहिए वो चाहिए। तो हम लोगों को मैंने पूरा अगरबत्ती का धुआं से हम लोग को परेशान कर देते हैं, लेकिन वो अगरबत्ती का बहुत पैसा देंगे। तो पॉइंट बीइंग कि एक कदरदान आपको चाहिए जो इसमें हो, ठीक है। तो अब वेयर आर वी नाउ, मतलब हम लोग हैं कहाँ? तो 5-6 साल का कहानी है, कहीं ना कहीं तो बहुत हम लोगों को परेशानी हुआ है। तो जो यूजुअल चैलेंजेस जो स्टार्टअप का होता है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर आपको कोई भी कहता है कि स्टार्टअप को बड़ा फायदा होता है, ये होता है, तो पॉइंटलेस है वो। चैलेंजेस बिजनेस करने का वही रहता है जो एक एस्टैब्लिश कंपनी का होता है, कॉम्प्लायंसेस का होता है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट का होता है। जर्मनी में बैठ के वहां पे कर रहे हैं तो नेचुरली चैलेंजेस है, बट फ्रैंकली वो चैलेंजेस ठीक है। वो तो मेरा मान लीजिए, अगर आप लोग कल को शुरू कीजिएगा, कोई भी आप में से कोई भी कंपनी वहां डालना चाहेगा, या तो मेरे से किसी इंसान का जो एक्सपीरियंस है उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो उसमें हमको नहीं लगता है कि बहुत हमसे गलती हो गई थोड़ी बहुत, पर ठीक है। गलती सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं हुई है, नॉलेज होते हुए भी गलती की है, तो इसलिए और गधापन महसूस होता है इसको। हाँ, लेकिन दूरी है, बाकी काम था इस वजह से भी। तो हम हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे कि अगर लोकल वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी क्या काम है, आईसी कोड कैसे लेना है, फलाना कैसे लेना है, क्या आपको एहतियात बरतना चाहिए सब चीज करने में, वो हम शुरुआत से ही बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे। हम लोग का एंडेवर चल रहा है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग अभी भी जो है अभी हम लोग का जैसे हमसे आपसे बात हो रहा है, वी आर कंटिन्यूइंग विद क्या कहलाता है अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक मार्केटिंग। एक वेबसाइट है जिसको हम लोग दूसरी तीसरी बार लॉन्च किए हैं। कुछ यंग मार्केटर्स हैं जो हम लोग को मदद कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग पे, कुछ लोगों को हायर किए हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स भी है हम लोगों के पास, क्योंकि एक मेरे बचपन का दोस्त है जो काफी सपोर्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को। वो जेपी मॉर्गन नाम की एक संस्था है, उसमें काफी सीनियर पोजीशन पे है। तो उसके पास हम गए थे, उसको हम कहे कि तुम इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर दो, तो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोग बिना किसी गवर्नमेंटल एड के खुद का, और इसलिए नहीं कि हम लोग गवर्नमेंटल एड में नहीं जाना चाहते हैं, हम लोगों को ये नहीं है उससे। पॉइंट भी क्या है, उतना हम लोग के पास टाइम नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, छोटा सा प्रोजेक्ट है, अपने लेवल पे है, तो आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है वो काफी ज्यादा स्कोप है उसका, काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं आप लोग। और फ्रैंकली आप लोगों को देख के हमको लगता है कि नहीं, हम सही रास्ता पे थे। और ये अगर हम किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए कोई भी मदद कर सकते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। ये रानी को भी पता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी शेयरिंग, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने में कोई हिचक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बिहेव करते हैं फॉर प्रॉफिट। उसका अपना फिलॉसफी है, हम लोग का अपना फिलॉसफी है। उसका डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि कई बार हम लोगों को विश्वास नहीं किया जाता हम लोगों के ऊपर कि बिना पैसा कमाए तुम कैसे कर सकते हो इसको। वो अपना ख्याल है, और हम अपोलोजिस्ट नहीं, हम अपोलोजाइज नहीं करते हैं इस बात के लिए। लेकिन रानी चूंकि बचपन से उनको हम जानते हैं, मेरी छोटी बहन की तरह है, वो मेरी छोटी बहन के साथ पढ़ी है, तो उनको पता है मेरे बारे में, उनको पता है, तो इसलिए हम कभी भी अवेलेबल रहेंगे किसी भी एडवाइस के लिए इस प्रोजेक्ट, आप लोगों के किसी भी प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो हम लोग का एंडेवर चल रहा है। समझने की सबसे बड़ी जो मेरी तरफ से जो हमको लगता है जो लर्निंग है वो ये कि आपको फंडामेंटल चैलेंजेस को समझना होगा। और फंडामेंटल चैलेंजेस जो है, ये 2 आर्टिकल्स हैं जो हम लिखे हैं। एक मतलब अपना थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं, ये दोनों का लिंक हम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है मेरे आर्टिकल्स को, ठीक है। तो इतना भी कोई, तो आप लोग जाके उसको पढ़ लीजिएगा तो मेरा शायद वो क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ जाएगा। तो उसमें आजकल जो हो गया कि कितना लोग लाइक करता है, हमको नहीं पता कितना लोग लाइक किया है, आप उसको देखिएगा। और इसमें एक है मेरा एक्सपीरियंस है भागलपुर में रह के हम कश्मीर स्कार्फ क्यों बनाए, और कश्मीर स्कार्फ को बनाने में क्या चैलेंजेस आया। और इसमें एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की एक इकोनॉमिस्ट हैं जो एक वैल्यू पे किताब लिखी है,
उस किताब को थोड़ा सा कोट किए हैं, वो तो बहुत मोटी किताब है, लेकिन उसका कंसेप्ट जो है वो हम कोट किए कि वैल्यू क्या होता है और वैल्यू बढ़ता कैसे है। ठीक है, तो उसमें एक ऑस्कर वाइल्ड का बड़ा उसमें कोट भी है उस किताब में, और जो हम जानते थे पहले से कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको हर चीज का दाम पता होता है पर मूल्य पता नहीं होता। तो जो दाम जानता है उसको अगर आप बेचने की कोशिश कीजिएगा ना, तो बोलेगा कि अरे ये हाथ से बनाया हुआ अगरबत्ती को हम 50 रुपए में काहे खरीदेंगे, अगरबत्ती ये तो है, जलाना ही तो है। तो गमछा बेच रहे हो, गला में लपेटना है, इसका तो 15,000 रुपया लोगे, इसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, अच्छा, अब उसका हम कॉस्ट बताने को हम तो तैयार रहते हैं, बोलते हैं कि ले लो कॉस्ट देख लो, लेकिन जो मार्केटिंग वाला लोग जो है वो बोलता है कि नहीं कॉस्ट दिखा दीजिएगा तो आप बहुत, आपको लोग वहां पे छिछड़ा बोलेगा, आप नहीं, आप कॉस्ट नहीं दिखा सकते हैं, आपको उसका उसको अपने आप जो है मूल्य समझना है। ठीक है, तो इसके एनीवे तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है। दूसरा है कि एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर, एक्सटर्नैलिटीज का जो मतलब भी हम उसमें थोड़ा समझाएं और बताएं हैं कि एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर यह है कि जब तक कि आप लोग अपना आवाज ऊंचा नहीं कीजिएगा, जैसे वो बता रहे थे कि काउंसिल में कैसे सिविल राइट्स के साथ डिबेट होता है, वो वीडियो हम तो जरूर देखेंगे, आप लोग भी जरूर देखिए वो वीडियो को, और इसलिए देखिए कि हम उस स्पीच में यही हम बोले थे कि यंग लोगों को इन्वॉल्व होने का जरूरत है, बिकॉज जो एक्सटर्नैलिटीज है ना, एक्सटर्नैलिटीज का सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है वो बेयर कौन करता है? अनरिप्रेजेंटेड लोग, अनबॉर्न लोग। और अनबॉर्न का मतलब होता है कि जो लोग, ऐसा नहीं कि जो लोग पैदा नहीं लिए हैं, जो लोग इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, और ऑब्वियसली जो अनअवेयर है। तो इन तीनों को जो को आपको अगर करना है तो आपको सिविल राइट्स में, आपको सिविल राइट समझना पड़ेगा, सिविल ड्यूटी समझना पड़ेगा, आपको एंगेज करना पड़ेगा अपने आप को, और जो रियल कैपिटलिज्म का जो प्रिंसिपल है, मार्केट प्रिंसिपल है, उस पर जाना पड़ेगा। रियल मार्केट प्रिंसिपल कि मेरा प्रोडक्ट जो है, मेरा मेहनत जो है, उसका सही मुआवजा मिले, सही दाम मिले, उसके लिए प्रोडक्ट का सही कम्युनिकेशन हो, झूठ नहीं बोले। जैसे कई बार यहाँ पे लोग झूठ बोल देते हैं सिल्क के बारे में, कई बार रंग के बारे में लोग झूठ बोल देते हैं, हाथ से बना हुआ नहीं होता है, हाथ का झूठ बोल देते हैं, क्योंकि हाथ का बना हुआ चीज 30 यूरो में आप बेच नहीं सकते, 1,000 रुपए में आप बेच नहीं सकते, और आप बेच रहे हैं तो पूरा पूरा परिवार उसमें काम कर रहा है, और उसके बीवी बच्चा को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, जिसके आप विलिंगली अनअवेयर हैं उस चीज के बारे में। तो ये फंडामेंटल चैलेंजेस जो है, ये हम थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ड्रामेटिक हो गया है, बोले विल नॉट गो अवे, मेरे लाइफ टाइम में शायद ना आ जाए, तो थोड़ा पेसिमिज्म है मेरा, लेकिन एटलीस्ट वी कैन चिप मतलब उसके हम उस पे तो कैन ऑलवेज, हम उस पे वार तो कर ही सकते हैं, बार बार थोड़ा सा लाई तो लड़ ही सकते हैं ना। तो ये मेरा एक्सपीरियंसेस है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। आप लोगों को कोई सवाल अगर लगता है कि हम उसका जवाब दे सकते हैं तो मैं हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू। So we are open for questions. किसी को सवाल है कोई, किसी के पास? Any question from anyone or any observation, anything? I have a question. जी अनुपम, Uh, बदला ले लीजिए। हाँ नहीं बदला नहीं है। Just मतलब kidding. कई बार लगता है कि अगर कोई छोटा सा इनिशिएटिव हो, उसके पीछे कितना जो भी था बहुत वाइकेरियस था। जैसे हाँ आप जाके देख लिए और बहुत सारी जगहों पे, लेकिन इसको देख के लगता है कि कितनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब मार्केटिंग से लेके वो वो जो आपका पिंडल है वो कैसे उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, और आर्किटेक्चर से लेके सांप निकल रहा है उसको देखे, और बाकी आपने कुछ पासिंग रेफरेंस भी दिया कि जो एचआर इश्यूज हैं, जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, वो कैसे इंटरफेयर करते हैं। मुझे लगता है वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन समटाइम हमको मतलब कई बार वो डिस्कस करना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग उसको एज्यूम करते हैं कि उस टाइप के इश्यूज आएंगे ही। और लेकिन मतलब काफी इम्प्रेसिव था ये सुन के कि आपने जहाँ से शुरुआत की और अभी जहाँ पे है और जहाँ जा रहा है, और
और ये जान के भी मतलब बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि क्या क्या बैरियर्स हैं, और हर लेवल पे, लाइक एक तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हैं। फिर शुरू में आपने जिक्र किया था अपने प्रेजेंटेशन के पहले कि बिजनेस, जो ईज ऑफ बिजनेस बैंक का रैंकिंग आता है, उस टाइप के ईज ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे आप स्टार्टअप है, स्टार्टअप के क्या चैलेंजेस हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उससे रिलेटेड, आपका ब्रांडिंग, तो काफी मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स का थोड़ा आइडिया लगा, थोड़ा एक टेस्ट मिला कि कितना चैलेंजिंग है काम करना, वो भी भागलपुर जैसी जगह में आपने इसके शुरू आप बिलीव नहीं किए अनुपम, पिछले मतलब हम लोग ना, मतलब आई कन्फेस, यहाँ पे तो क्लोज्ड ये ग्रुप है, तो कई अभी तक ना हम लोग सैंपल बोल के भेजते रहे हैं वहां से ना, यहाँ जर्मनी में इंपोर्ट करते रहे, जर्मन कंपनी जो है। कल परसों फर्स्ट टाइम हम लोग का 150 स्टाफ का कंसाइनमेंट ऑफिशियली, मतलब कि बिहार का जीएसटी डिक्लेयर करते हुए और दिल्ली का जीएसटी डिक्लेयर करते हुए, सारा पेपर वर्क होते हुए, और ईवे बिल जिसपे अब पता चला कि हम लोगों को थोड़ा वो एक्सपोर्ट का कुछ 15% या 10% उस पर ड्यूटी मिलेगा, तो हम ऑलरेडी डिक्लेयर भी कर दिया है कि तुम लोगों को बोनस मिलेगा वो पैसा से। हाँ, मतलब क्योंकि सब्सटैंशियल है, 40-50 हजार रुपया है, तो हम सबको 10-10 हजार रुपया दे सकते हैं बोनस, which is substantial, तो ये पहला बार 5 साल में हम लोग अच्छा, अब इसमें खाली I'll be fair, इसमें खाली गवर्नमेंट का दिक्कत नहीं है। It's not just कि ना, it's just the nature of things, जैसे आप बोल रहे हैं, just nature of things. So I don't want to diss anybody. हम नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया में well, I mean, to an extent problems है, and you are aware. I mean, being Indian, you know. But you're right. I mean, it's the mixture of all of these things, which और आप बोल रहे थे ना विकेरियस एक्सपीरियंस का ना अनुपम, हम भी विकेरियस के लिए ही गए थे, टू बी ऑनेस्ट। ओके, मतलब कोई प्लान हीरोइज्म नहीं था कि ना प्लान करके कि हमको ना, मतलब वो एक्सपीरियंस, बट एंड दिस शुड बी अ वार्निंग इन द सेंस कि अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो जैसे आपका रोल कट आउट है, एंड आई एम ग्लैड जब आप आंसर दिए मार्केट एक्सेस वाला, दैट टेल्स मी अबाउट योर माइंडसेट इंडिविजुअली एज अ पर्सन, कि भाई मेरा लिमिटेशन है, दिस इज व्हाट आई कैन डू, एंड यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, यू कांट रेज एनीबॉडीज एक्सपेक्टेशन एंड से कि हम तुमको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे, एंड इट्स नॉट feasible, and I agree with you. So but I'll be happy. I mean, I'll be happy. I'll be happy if you can have a look at the website and just to. But I mean, Samir Bhaiya will be wearing a scarf, so he and his partner. I mean, both of them. I'm sending one for each one of them. अच्छा, that's good to know. और तो इसमें आपने बहुत सारे चैलेंजेस की बात की, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, या सबसे मतलब रैंक में नहीं, मतलब या एक दो जो चैलेंजेस जो सबसे बड़े थे आपके लिए, और दूसरा कि अगर आप भागलपुर में नहीं करके कहीं और करते, मतलब असम में करते, ऑफ कोर्स मतलब जहाँ पे होता है सिल्क, वहाँ करते, तो आपको क्या लगता है वहाँ ज्यादा हो सकता है कि आपको और ज्यादा सक्सेस मिलती? तो दो सवाल है मेरे, एक तो बैरियर्स क्या क्या, मतलब मेजर क्या चैलेंज था ऑफ ऑल द चैलेंज? आसाम में थोड़ा आसान रहता, आसाम में थोड़ा बिहार से आसान रहता, मार्जिनली, तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट मार्जिनली वो मार्जिनल डिफरेंस बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है उसमें, और वो इसलिए कि थोड़ा इनसाइड इंफॉर्मेशन है हमको, क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ आसाम का काफी वेल नोन फिल्म मेकर हो गया है, तो हाँ, आई मीन ही टेकन असमीज फिल्म टू अ डिफरेंट लेवल, और काफी मतलब ना स्टड सा डूड इंसान है, मतलब नहीं था वो डूड हो गया है एकदम, तो ट्रिबेका में लिखा जाता है फिल्म को लेके अपने, तो उसको मैं कहता हूँ कि साला मतलब बिहार से तो बम्बई बॉलीवुड जाना पड़ता है ट्रिबेका में जाने के लिए, तुम वापस आसाम में जाके यू कुड डू दैट, and the reason why I'm highlighting film aspect या filming, it came to my mind because वो थोड़ा ब्रांडिंग में आसान हो जाता है, लोकल फिल्म मेकर्स मिल जाते हैं हमको, लोकल, क्योंकि मेरा शुरू से मन था ना कि जैसे ऐप आप बना रहे हैं तो बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके लोकल लड़कों से बात करके फिर करें, तो आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, मैं रानी विल टेल यू, बहुत मतलब दे आर वेरी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट पीपल देयर, और काफी लोग हैं वहां पे, लेकिन एक तो चैलेंज हो गया कि मैं बाहर रहता हूँ, तो उसके कारण भी जाके वहां देखना, तो वो इश्यूज हैं, ठीक है। बिहार का माइंडसेट थोड़ा अलग है,
बिहार का माइंडसेट अलग है। एचआर प्रॉब्लम्स बिहार में होता है, ईगो है थोड़ा सा लोगों में, ईगो है। हम लोग भी जब अपने ही लाइफ में बताते हैं, जब हम नौकरी छोड़े एक बार, तो माँ बड़ी चिंतित हुई। मेरे पापा अभी भी याद है, बोलेगा छोड़ो साला 50 नौकरी मिलेगा, यू नो दैट का। Now I look back and I say, Dad, what were you doing? I mean, sorry, but that's a absolutely wrong advice to give a young guy to say कि 50 नौकरी मिलेगा, नहीं मिलता है, you know? तो जैसे ना मेरा जो वहाँ पे डायर है, मैनेजर है सुधन, उसको ना हम ऐसा ही समझाते हैं कि नौकरी आपको है ना, जितना जरूरत आपको उतना आपको, दोनों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और आपको हिचक नहीं होना चाहिए बोलने में कि सारी नौकरी की जरूरत है हमको, और हमको हिचक नहीं होता है बोलने में कि आपके बिना नहीं चलेगा मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये म्यूचुअल है। और आपके बिना मेरा प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में हमको जाना ही नहीं है। हमको नाउ दैट वी हैव फाउंड ईच अदर, लेट्स स्टिक विद ईच अदर। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है हमको बोलिए। तो इतना अच्छा कल्चर हो गया कि आज उसकी वाइफ बीमार है तो हमको मेल लिखेगा, तबीयत खराब है तो हम कभी नहीं बोलते कि बहाना वो नहीं अब बनाता है। अब वो बहाना नहीं बनाता है, वो उसको मन करता है आने का। तो कह रहा है कल हम आ रहे हैं, बोला नहीं काहे आइएगा, आपको जरूरत अभी मतलब ठीक है, हो गया है, इस महीने प्रोडक्शन हो गया है, कहीं देखेंगे। बहुत छोटा काम है तो बहुत प्रेशर भी नहीं है इतना। तो वो कल्चर जो है ना, वो हम लोग किसी फर्म के कल्चर के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से इस वेंचर के एचआर कल्चर के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हमको एहसास हुआ कि भागलपुर में ये कल्चर को बदलने के लिए हमको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि असम में थोड़ा इससे बेहतर होता, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, इकोसिस्टम वहाँ बेहतर है। तो कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक रीजंस हो गया, एयरपोर्ट है, तो थोड़ा पटना से भागलपुर जाने में बहुत परेशानी होती है, बागडोगरा जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे आइए, तो चैलेंजेस हैं, बट वो ठीक है, मतलब ऐसा भी कोई ये नहीं है। तो मार्जिनल होता चैलेंजेस, मार्जिनल थोड़ा बेहतर होता आसाम में, लेकिन फिर वो कंफर्ट नहीं होता जो हमको है भागलपुर में। वो एक जो मेरा भी तो एक हमको भी तो आनंद चाहिए, हमको भी तो वो सृजन करने वाला जो सृजनात्मक ऊर्जा जो मेरे अंदर है, या जो चाहिए हमको, वो तो भागलपुर में ही मिलेगा ना। क्योंकि स्टार्ट वहीं से हुआ था कि जब हम यहाँ पे मेरा बच्चा लोगों को देखते हैं कि जर्मन में किताब पढ़ता है, देखता है कि ये नदी का नाम, लोकल नदी का नाम पता है, लोगों को लोकल का पता है, हम लोगों को भागलपुर का कुछ पता नहीं था। तो हम ना रानी के बारे में हमेशा ही बोलते हैं कि दिल्ली में पढ़ी वही काम कर रही है। हम लोग पढ़े कुछ, रहे कहीं, कर कुछ और रहे हैं। तो एक तरह का अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ? अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट है। वो कॉन्फ्लिक्ट रानी में नहीं होगा, वो आप में भी नहीं होगा एक लेवल पे। ठीक है, ज्योग्राफिकल आपका होगा कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत, पर ठीक है, वो तब भी मैनेजेबल है वो, क्योंकि आपको पता है प्रोफेशनल रीजंस है, you have your professional expectation, and that's fine, but you're doing what you studied. हम लोग तो कहीं कुछ हो गया, इसका कुछ किए, उसका कुछ किए। तो बिहार से जुड़ना is a geography of self. I mean, I'm sorry, I'm answering you a very in a philosophical manner, but जो इस प्रोजेक्ट का जो उद्गम है, वो ऑलरेडी एक ओरिजिन जो है, वो ऑलरेडी एक फिलोसॉफिकल थॉट से है। और मेरे जो हीरो हैं वो ब्रूनो लुचिनेली हैं। एक कंपनी है इटली में जो 700-800 मिलियन की कंपनी हो गई है, जिसका स्कार्फ उतना ही तक हमको बेचना है, आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो। तो मेरा टारगेट वही है। अब हमको मालूम है कि थोड़ा छोटी मुंह बड़ी बात है, बट टारगेट वही है। ये क्या जो ये सिल्क है, ये भागलपुर का ही है क्या? लेकिन आप बता रहे थे कि यहाँ का कल्चर है और यहाँ पे बहुत टाइम से लोग इस तरह से सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली भागलपुर में पॉसिबल है, भागलपुर में हुआ भी है, लाने का कोशिश भी किए हैं। बिहार में कई सारे इनिशिएटिव्स भी हुए हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हुए हैं। इस पे रानी आपको बताएगी कि रानी का और ग्रैंड प्लान है इस पे। रानी का कहना है कि आप मतलब घर घर में उगा सकते हैं, और हम लोगों को, लेकिन ये जो है, हम लोगों को थोड़ा लंबा वैल्यू चेन हो गया है। असम से आता है मालदा, और मालदा में एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा
सोशल प्रोजेक्ट कह लीजिए, लेकिन बिजनेस लेवल पे हो रहा है, वहां पे हम जाके देखे हैं, आई स्पेंड सम टाइम देयर। और वहां पे होता क्या है कि थोड़ा प्रोडक्ट इनोवेशन हम कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना कि इसमें रोआ बहुत निकलता है एरी में, तो उसको 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 रोआ को कम करने के लिए आपको थोड़ा टाइटली उसका जो वूंड कराना पड़ता है, लेकिन बहुत टाइट कर दिया अगर तो मेरा स्कार्फ टाइट हो जाएगा। तो स्कार्फ को सॉफ्ट करने के लिए ना, मेरा स्कार्फ आप देखिए, ये देखिए बगल में है, ये ना पूरा ऐसे स्कार्फ जो है एकदम से होता है, और इसका मेमोरी है, इसका बहुत सुंदर सा ये है। तो इसको करने के लिए हमको उन लोगों के पास जाके बोलना पड़ा कि इसमें आग मत लगाइएगा, इसमें ये मत कीजिएगा। तो थोड़ा पैसा देते हैं, शुरू से ही बोल दिए कि बहुत छोटे प्रोजेक्ट हैं। भागलपुर में मिलता तो जरूर हम वहां से कर रहे होते, शुरुआत यही था कि भागलपुर से ही करेंगे। बट रानी has an idea on that. I mean, she will share with you. कि उसका कहना है कि गांव-गांव में ये उगा सकते हैं और उसके बाद हम लोग इसको कर सकते हैं। So anybody else has any question? Nayan ji, do you have a question? Yeah, hello. Yeah, Yeah, Nayan ji. yeah, I'm actually totally. I'm also learning it because it is very new for me. All of this. One question, not maybe not a question, but maybe one observation. Like I have been to India and in Bangalore, and then from there we went to a village, and then there we went to an ashram that he was a follower of Gandhi, and they did the khadi dye and everything, and then he explained that why the natural color should be there and why the price is more, because it is not harming to the environment, and it is very good, like for even for the staff who work on that. Work on this. My doubt is that how do we say that to the customer that like if you are paying much, you are doing something good for the environment, because I have even seen some of the documentaries of Indonesia where the dyes are creating havoc for the locals, because that's a hotspot for dyeing clothes. So how do you convince that to the customer that you are paying something for the environment, not only just for you? Maybe. So Nayanji, it's very simple. I mean, you know, your question is very, very relevant, but here you are assuming that the consumer is not aware, and that assumption, in my opinion, is partially wrong. So, what I'm not saying they don't know, but they might not be conscious of it. So very few people, because we are living in times, or we have been living in times for some time now, where we are unaware of the processes by which the products are made. So we are not materialist anymore. We do materialism. The definition of materialism is that you understand material, but we are not materialistic anymore. We are. There's a big difference between materialism and consumerism. So we have become, and not even consumer. We basically devour products. We just devour, and we move on to the next by the time we are bored of something. So nothing lasts. Nothing lasts. You know, earlier things were meant to last. Headphones, 50 years, 60 years. Refrigerators. So the assumption that you're making that consumer is unaware is partially wrong. You're right in some ways. So that's one. The second is, obviously you have to be made conscious of the fact that, look, when you buy I don't know, you know, some chocolate cream, and it's got palm oil in it, and what Anupam was saying, the palm oil, you know, linkages to palm oil and the forests that are denuded to grow palm oil or palm trees. That linkages has to be obviously, you know, brought to the
to the attention of consumers. There are some work done. I mean, I know, for example, in Indian silk industry, there's an American journalist who pointed out there are two industries in India where modern day slavery exists. And silk dyeing is one, and the other is brick kilns, you know. So brick kilns where you don't even get urinal breaks and stuff, and you know, no toilet breaks, you work continuously, you are enslaved, your family's enslaved, you know, bonded labor and all that. And same goes in silk, in silk dyeing. Now, obviously, then question comes, we have stereotyped luxury in a way where luxury means a perfectly finished product, a product which is absolutely, you know, like, well, you know, you cut the potatoes in a certain way, you present the dish in a certain way, there should not be any, and by nature it's not like that. So the moment you talk about natural dyeing, you talk about variations. Now, there the way I communicate is the variations of 2-3 levels. One is what I call the dye batch variations. So the dyes that I bought in July will be different from dyes that I bought in September, because गुलाब जो है या अनार जो है वो एक ही तरीके से तो उगेगा नहीं. There will be differences, right? So that is across batch variations. Then the fact that you are dyeing one day and you are dyeing the next day, there are inter-process differences, and then there are intra-process differences or variations. So how do you then? What I do is I manage at a product level. That if I am making a design scarf with designs, then I can hide the variations, at least the perceptual variations. Whereas when I'm dyeing, when I'm making a plain scarf, and I can show you some where it's only one color, but I ensure that it is made only in small batches and it uses only one batch thing. So these are some of the sort of thinking that where you're not compromising on, because you can't take for granted from consumer कि उसको जो बेचेगा वो खरीद लेगा इसलिए कि वो हाथ से बना हुआ है. वो भी गलत है, क्योंकि अगर आपको वो कोई दाम दे रहा है तो he or she wants to look good in that product, right? तो एक कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ, बोल रहे हैं कि देखिए लिमिटेशंस के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है वो आपको हम दे रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम वी आर मेकिंग यू अवेयर. जैसे हम हर एक स्कार्फ में हाथ से चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि वेरिएशंस अगर हुआ और आपके वेरिएशंस एकदम इनटॉलरेबल वेरिएशन है अगर, तो प्लीज आप स्कार्फ वापस कर दीजिए, आपको हम दूसरा देंगे. अगर आपके टेस्ट के लायक नहीं है तो, और आपको लगता है कि नहीं इतना वेरिएशन तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप बेशक वापस कर दीजिए, हम उसको दोबारा देंगे. So those are the compromises that you should be willing to make as well. So it is a very philosophical thing where you are saying, क्योंकि आप for granted नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जब आप लगाइएगा तो उसमें कोई भी चीज जब सस्ता होते जाएगा तो उसका अपना एडवांटेज है. वहां पे लर्निंग कर्व आ रहा है, वहां पे इकोनॉमी ऑफ स्केल आ रहा है. तो अगर आप कहिए कि नहीं ये टी शर्ट, हर एक टी शर्ट मेरा अगर 1000 यूरो का अगर बिकने लगेगा तो हम तो नहीं पहन पाएंगे. तो आई एम एंड आई होप यू टू, वी ऑल आर बेनिफिशियरीज ऑफ दैट इकोनॉमिक मिरेकल व्हिच इज इकोनॉमी ऑफ स्केल. तो टेक्नोलॉजी हैज इट्स यूज, इट हैज इट्स यूज. उसमें क्या हुआ है कि जो एक्सटर्नैलिटीज है, जो आप कह रहे हैं कि इंडोनेशिया में हैवक हो रहा है, वो हो रहा है, वो सिविल सोसाइटी या सिविल मूवमेंट के थ्रू वो, और रियल कैपिटलिज्म जिसका प्राइस कौन पे करेगा, who's going to bear that cost? हम लोग we are getting away with it because nature is personality and we are putting it on the next generation or people who are not aware. तो वो cost aware कराना पड़ेगा आपको. So you can't challenge the economic model. You have to take into account all the costs. जो अनुपम बता रहे थे कि इन्वायरमेंटल रिस्क मिटिगेशन का जो हो रहा है. रिस्क मिटिगेशन का मतलब एक लेवल पे तो वो भी रिस्क को कम करना, दूसरा कि जब आप प्राइस का एक्चुअल चार्ज करने लगेगा, जब आप कहने लगे कि भाई चंपा नाला में जो गंदा आ रहा है उसका इंडिगो का पैसा आपको देना पड़ेगा. तो that's what I think. I mean, that's the only way you can make aware. Documentaries, communication, product compromise, all of that. Yeah. And like just to add to your point, like Please. and in this case scenario, like if we say that we are not polluting your immediate environment and that you are
saving on your health, that can be a thing. Like if we have a local environment. Absolutely, and people buying, and people see. Mera now my challenge is not in the proof of concept. My challenge that has been proved over and over again. We haven't sold thousands of scarves, but we have sold hundreds of scarves at a price which is at least to me it's an eye popping. कि 200 यूरो कोई दे रहा है अगर प्रोडक्ट का, तो इट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत है. तो वो कोई अगर दे, हम खुद नहीं खरीदते अपना प्रोडक्ट, हम तो बोलते हैं उन लोगों को, हाँ हम खुद बोलते हैं कि आपको तो गिफ्ट मिल जाता है आप लोगों से. So that proof of concept is there, that people are buying. Now the question is whether there are enough people to sustain that industry or even that firm. That I don't know. That is exactly my challenge now. I want to find out whether or not this is अगर वो नहीं है, then we will sustain it as a hobby. Then we will all of the 3-4-5 दोस्त हैं हम लोग, हम जाएंगे बेगिंग बोल लेके और बोलेंगे कि भाई थोड़ा पैसा दे दो, and we will sustain it. But बंद तो नहीं करेंगे. That's the idea. मेरा exactly यही था भैया. मेरा एग्जैक्टली यही चीज पूछना था कि जिन वैल्यूज को आप लेके चल रहे हैं, जो आपका वैल्यूज है, वे यू आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वे यू आर टॉकिंग अबाउट कि GHGs के एमिशन पे रोक लगे, जो आपका वैल्यूज है वे यू आर वांटिंग योर स्टाफ टू बी रेम्यूनरेटेड वेल, ये पूरे वैल्यूज के साथ you are also talking about this product जो यहाँ का भागलपुर का प्रोडक्ट है, उस चीज को बनाकर आप ले जा रहे हैं. What I want to ask is कि when we are thinking about this at a bigger scale, हम लोग भागलपुर में उसको थोड़े से उस लेवल पे सोच रहे हैं जहां पर हम चाहते हैं कि हमारे जो गांव वाले हैं उनके घर के हाउस होल्ड्स चलें, उनके हाउस होल्ड्स को रन करना है. So how, I mean, are we thinking about something which is utopian? I mean, is it achievable? हम लोग क्या not really. I don't think so. I mean, and honestly, I mean, the more I have traveled, the more I have. I mean, भागलपुर में every time, and I have traveled. I mean, हमको तो बचपन में लोग माँ बाप आवारा बोलते थे. हम गाँव में घूमते थे और मेरा तो हमको तो बहुत कुछ पता है भागलपुर के बारे में. I take pride in that. I take particular pride in that कि हम तो अंगिका बोल भी लेते हैं. आपको पता है, अंगिका बोल लेते हैं और अच्छा बोल लेते हैं. माइंडसेट भी वही वाला है, थोड़ा डरो लगता है लोगों को. तो हमको लगता है कि आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्किल वहां पे ना ईगो गेम हो जाता है कि लोग वहां पे जैसे बीवे सेंटर में जाता है, लोग बोलता है कि तुमको सिखाएंगे स्किल, तो लोग बिदक जाता है. तो कहता है कि हाँ तो हमको क्या सिखाओगे, हमको तुम क्या सिखाओगे. एंड दे आर राइट, दे आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट. किसी को आप ना किसी के लैंग्वेज के बेसिस पे, किसी के उसके पहनने ओढ़ावा के बेसिस पे आप जज कर रहिएगा, तो वही हो रहा है ना. ये जैसे हम जब चेन्नई में हम एक छोटा सा कंपनी था, उसको हम टर्न अराउंड कर रहे थे. तो मेरा टर्न अराउंड इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हम मीटिंग्स में ना हम हमेशा जो है बोलते थे कि तमिल में आप लोग बात कीजिए. अपना चॉइस था उन लोगों का. कुछ लोग अंग्रेजी बोलता था, कुछ लोग को हिंदी अगर लटपटा के बोला हिंदी बोलेगा. तो हम ना लैंग्वेज को बैरियर नहीं मानते हैं, हमको लगता है. उसी तरह से उन लोगों का स्किल बैरियर नहीं है. उन लोगों का स्किल एक्चुअली, तो लोग आप देखिए, अरे दे डोंट नो हाउ टू डू, अरे क्या बकवास है. दे हैव द बेसिक्स, दे नो हाउ टू. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन imparting the basic skills and refining those skills. And frankly, refining those skills, you have to get them in a flow, in a state of flow, and that does not come when you're being disrespected for the same thing that you have, you know. कल को आपको ना नर्ड बोलने लगे कोई ना, जो आप कि वो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग आप करते हैं और अनुपम वर्ल्ड बैंक में हैं तो नर्ड हैं, और बार उनको ये कहने लगेंगे ना, तो बोलेंगे यार मतलब कम ऑन, I've got a PhD in this subject. सूक्ष्म है बट काफी बारीकी से पढ़े हैं उस चीज को हम. तो वो जो प्राइड है ना, वही प्राइड झलकता है वो वीवर्स में भी. तो मेरा अप्रोच, अब आप देखिएगा जब हम बैठते हैं उन लोगों के साथ ना, तो हम एक्चुअली आई मेक अ फूल ऑफ माय सेल्फ. जो चीज आपको मालूम है, आई विल नेवर डू इट, बट आई ट्राई डूइंग इट. हम मशीन में बैठ जाएंगे, बोलेंगे चला के देखते हैं, देन मेरा पैर फिसलेगा. तो दे टेक अ पर्टिकुलर प्राइड. बच्चा वाला है, हम जैसे हम लोग को होता है. अगर आप अभी जैसे हमको अभी अच्छा लग रहा है बोलने में, क्योंकि आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो देयर इज अ चाइल्ड लाइक
There's a childlike emotion in me which wants to share. It's you can interpret this as being boastful, or you can interpret it as like my life's work. तो हमको भी एक कहीं ना कहीं वो पुलकित वाला हो रहा है कि अरे चलो सब लोग इंटरेस्ट ले रहा है प्रोजेक्ट में. But the same feeling goes for them. I mean, it's a very, you know, understand, it's you're human beings you're talking about, right? तो घर घर में ये कल्चर है, घर घर में स्किल है. जो चैलेंज आपका है ना, चैलेंज आपका होगा वो ये होगा कि वही मार्केट एक्सेस वाला चैलेंज होगा. शुरुआत में आपको ये होगा, आपको देखना पड़ेगा कि लोकल जो आपको बताए थे कि अगर 6 प्रोडक्ट है, 2 आपका फ्लैगशिप प्रोडक्ट हो जाएगा जो प्रॉफिट करेगा, 3-4 प्रोडक्ट आपका प्रॉफिट नहीं करेगा. और लाइक योर मॉडल की वो लिंकेजेस है. तो अगर एक प्रॉफिट नहीं भी कमा रहा है प्रोजेक्ट, बट वो किसी और का इनपुट हो गया है, ठीक है, इनपुट हो गया है, तो वो इनपुट से जो आउटपुट निकलेगा वो वैल्यू क्रिएट करेगा फिर बाकी वैल्यू चेन का. तो आपका मॉडल, मतलब अगर कोई कहता है कि यूटोपियन है और कोई हंसता है तो आई एम सॉरी, बट उसकी बेवकूफी होगी. Okay, tell me one more thing. भी लोग हंसता है. हाँ, tell me one more thing. Now you know our concept. हमारा concept यही है कि we are trying to build a value chain, a local value chain around the sustainability of Champa. उसके अंदर हम लोग products identify करके, यहाँ के local specific products identify करके हम लोग products बनाना चाह रहे हैं. Now, since we have a story behind it, we have this river, we have the people, we have the community, we have the river as the ecology, and we have the, you know, उस economy को build करने का हमारे पास एक narrative है. So what if we storify this entire, इसको हम लोग storify करते हैं, and then we go to people? Do you think we have a better chance of selling a product with people who really understand it? और आजकल आपको लगता है कि वो understanding अब आ रही है? क्योंकि हमको लगता है कि लोगों में अब ज़्यादा understanding आ रही है regarding being good, being nice to the environment. ये थोड़ा फैल रहा. I don't know how that will translate into, you know, selling your product. उसको अपना पैसा निकालते वक्त लोगों को क्या लगेगा, लेकिन still वो environment के प्रति एक जागरूकता लोगों में आना शुरू हो गई है. So storifying this whole thing, आपने भी किया है ये चीज, उसको स्टोरीफाई करके आपने बढ़ाया है. What is your experience in that? उसमें मेरा थोड़ा बिटर स्वीट एक्सपीरियंस है. और बिटर स्वीट इसलिए है कि जब लोग अवेयर हो जाते हैं ना, जैसा बोले ना कि एनवायरनमेंट का अवेयरनेस आ गया है, लोगों में जागरूकता है, तो लोग गलेबल भी हो जाते हैं. जब आप ना किसी चीज पे बिलीव करने के लिए आप जब रेडी हो जाते हैं ना, देन यू हैव बीन ट्राइंग टू बिलीव समथिंग. क्योंकि ना उसमें क्या होता है ना कि जैसे वो जो ह्यूमन माइंड है ना, जो कॉग्निटिव बायसेस जो है ना, बड़ा अजीब तरीके से फंक्शन करता है. तो मैं एग्जांपल, मतलब बहुत फिलोसफाइज नहीं करेंगे, लेकिन एग्जांपल आपको देंगे. जैसे आपको ना अपना गिल्ट कम करना है ना, तो आप जस्टिफाई कीजिएगा बहुत चीज. मतलब कभी कभार अगर अपने बाल बच्चा पे खिसिया गए, चिल्लाए, हाँ, तो बोले यार तुमको डिसिप्लिन देने के लिए कर रहे हैं, तो हम ऑनेस्टली अपने आप से ही पूछते हैं कि हम तो ऐसा नहीं सोचते थे जब हम पे चिल्लाए थे. हाँ, हम तो नहीं. तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि गलिबिलिटी आ जाता है. जैसे अभी भी आप किसी को जाके जर्मनी बोलिए ना कि ये हैंडमेड है, तो फर्स्ट हो जाता है कि अच्छा इसकी तो प्राइस सिग्नल्स की हैंडमेड है. सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि लोग देने को तैयार नहीं है, बट बहुत तहकीकात करने को तैयार नहीं है. देयर इज अ बिग डिफरेंस. So you have to understand, it's not just about willingness to pay a premium. There should also be a willingness to investigate something, and that's why you have. Imagine. Let's take a case of what Anupam shared with us, his role of evaluation. Right? He's doing it professionally for projects because World Bank, being in the situation, being in the position they are, working with the governments. Imagine the chances of the money being wasted, and imagine the backlash that people. I mean, I have heard stories कि बारे World Bank वहाँ पे 50 feet पे काम कर रहा है and all of that. But thankfully, I am also exposed to some people who I know कि टर्की जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कोई गांव में जा रहे हैं. मतलब क्या वो मतलब are they wasting their time? They're not wasting their time. They're investigating. They will make mistakes. Similarly, in our process, in our everyday life, our involvement in a product
our involvement in a product has to be a very high involvement as well. And the problem is we are just superficially involved in buying anything. कहीं भी घुस गए, खरीद लिए, जूता खरीद लिए. I'm saying all of us. I'm not being holier than thou here. I mean, all of us have that, right? तो उसके कारण वहाँ गलिबिलिटी बढ़ गया है. तो आपका स्टोरी में ऑथेंटिसिटी कहाँ से आएगा? ठीक है, वो उसका साइकोलॉजिकल एलिमेंट क्या होगा, उस पे आपको बहुत ध्यान. उसमें क्या है फिर कि अगर आप बहुत ज्यादा वो विक्टिम कार्ड भी प्ले कर दीजिएगा ना, then people get put off. I have experienced this first hand. अगर आप डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, फैशन प्रोडक्ट बेच रहे हैं और 30-40 के बीच में अगर आपका प्रोफाइल का कोई बैंकर है, उसको आप बेचने जाइएगा, he won't care कि आपका प्रोडक्ट जो है वो चैरिटी है क्या है. He wants to look fashionable. She wants to look fashionable. And you cannot say कि वो गलत है. Because हम खरीद इसलिए रहे हैं कि हमको अच्छा लगना है. There is a certain vanity in it, right? I'm a consumer. I need this, whatever the carnal side of it or whatever it is, I need that. तो उसको जज करना, अरे खाली वो दिखाने के लिए स्टाफ खरीद, हाँ दिखाने के लिए ही खरीद रहा है, लेकिन उसके बाद वो तो आपको प्रोडक्ट आप बना लिए हैं, that's not sufficient. That's where the journey starts. उसका कैसे आप उसको पोजीशनिंग कीजिएगा, उसका स्टोरी क्या. तो don't rely on just narration. ठीक है, उसका मीडियम चुनना पड़ेगा आपको, उसका आपको ये मतलब ना काफी, और उसके लिए तो हम एक्सपर्ट तो हैं नहीं उस पे, हम भी बहुत तो धीरे-धीरे हम सीखे हैं. तो जैसे मेरा ब्रोशर वगैरह है, जब हम भेजते हैं दोस्त लोगों को तो लोग देखता है हम, अच्छा उसमें हम क्या किए, हम खुद कंट्रोल ले लिए. हम पैसा नहीं था मेरा कि हम बहुत बड़े फर्म को हायर करें, तो हम खुद कंट्रोल ले लिए, खुद से सीखे, फोटोशॉप ये वो करके उसमें हम अपना मतलब जस्ट टू टेक कंट्रोल कि लास्ट में कैसा देखना चाहिए. तो जब उस लेवल पे पहुंचे तब जाके स्टोरी लोग एक्सेप्ट करने लगे, तो वो गलिबिलिटी जो है वो कम होता चला गया. मेरे जो कंज्यूमर है 15, 20, 50, 100 लोग जो भी हैं, लेकिन आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि खाली आप कहानी बोल दीजिएगा और विश्वास लोग कर लेंगे तो दे आर नॉट नेसेसरली ऑन योर साइड. कल को कोई और कंपनी आ जाएगा, वही कहानी बोलेगा, उसमें आधा सच होगा, तभी वो मान लेंगे. And not because they are weird or anything. They are trying to believe in good, which is exactly the good thing. Which is exactly the good thing. कि environmental awareness के कारण people want to believe it, but they don't have time to investigate. That's why they have these certifications. But even those certification processes have been some. I mean, not every time, but sometimes they have been, right? कॉफी के एग्जांपल अनुभव दे रहे थे. बड़ी रिसेंटली किताब आई है कॉफी लैंड करके. वो कॉफी लैंड का जब आप पढ़िएगा तो बिकॉज कॉफी का एग्जांपल हम हमेशा देते थे अपने ट्रेड के क्लास में. हम हमेशा देते थे कि कॉफी जो है फर्स्ट वर्ल्ड में हर लोग एक इंसान कंज्यूम करता है, बट कुछ पता नहीं है कहानी के बारे में, कुछ पता नहीं होता है. हम लोग कंज्यूम करते हैं, फेयर ट्रेड पे मोहर लग गया, खरीद लिए बस. और फेयर ट्रेड का दाम 10% से ज्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम 20%. उससे ज्यादा दाम पे क्या बिकता है पता है आपको? कनोजियर कॉफी. वो बुटीक जो भी कहलाता है, बुटीक रोस्टरी या जो भी इसको कहते हैं, वहां पे वो लोग वहां पे 20 यूरो में बिकेगा 200 ग्राम, 50, 250 ग्राम. फेयर ट्रेड से ऊपर वो है वो कैटेगरी. तो ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि फेयर ट्रेड से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है उस चीज को जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ना. तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में कैसे स्टोरी को डालना है, वो है स्टोरी. मेरे हिसाब से नरेशन तक नहीं रहने देना है. स्टोरी को प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्रिएट करने में बड़ा चैलेंजिंग है वो, बट वो हम लाएंगे. एक दो बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर वगैरह हैं, उनको हम लेके आएंगे. वो लोग काम करते हैं, अफ्रीका में काम करते हैं, यहाँ पे वो LVMH वगैरह को एडवाइस करते हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बोल सकते हैं. मेरा प्रोजेक्ट बहुत छोटा था तो उन लोगों को उतना मजा नहीं आया इसमें. थोड़ा बहुत एडवाइस देके आपको बोला कि तुम देख लो अपने. उन लोगों मतलब ईगो होता है ना, बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए. तो अब जैसे अनुभव को हम बुलाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए गमछा के लिए, तो बोली सूट, मतलब वो मजा नहीं आएगा. आपके बड़ा प्रोजेक्ट में आएगा तो हमको खुद भी बोलने में अच्छा लगेगा.
तब तो मेरा जो अभी सो कॉल्ड ह्यूमिलिटी है ना, सब साइड में करके I'll jump on, you know. So you see what I'm trying to say, कि ना वो आपको you'll have to think in those terms. कंज्यूमर जो पैसा दे रहा है ना, जो पैसा दे रहा है वो बहुत अलग सोच रहा है. उसकी गलेबिलिटी को अकाउंट में लेना है आपके, उसके इन्वॉल्वमेंट को अकाउंट में लेना है आपको, उसके टेस्ट को, उसके प्रेफरेंसेस को, उसके सब चीज को मतलब और ज्यादा चैलेंजिंग है. लोग कहता है कि नहीं स्टोरिफिकेशन इज इजी, इट्स और इवन मोर चैलेंजिंग देन अ नॉर्मल प्रोडक्ट. नॉर्मल बिकॉज़ गलेबिलिटी बहुत आ गया है. ओके, थैंक यू सो मच भैया. किसी और को कोई क्वेश्चन? शुभी, यू हैव एनी क्वेश्चन? यू आर ऑल वेलकम. आप ईमेल शेयर कर लीजिएगा. जरूर जरूर भैया, आपका हम ईमेल भी शेयर कर देंगे. एंड नयन जी इज फ्रॉम स्टुटगार्ट एंड ही वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू. एब्सोल्युटली. अरे आप फ्रैंकफर्ट आइए, फिर स्टुटगार्ट तो एकदम पास में है. हाँ सर, हम फ्रैंकफर्ट आते ही जाते रहते हैं. एंड देन अभी फिर बिहार कम्युनिटी का जब इवेंट होगा सितंबर में है, देन फिर से आएंगे. तो प्लीज एकदम आपको फोन नंबर वगैरह भेज देंगे ईमेल पे, आप फोन कीजिएगा, हमको फोन कीजिएगा. तो बहुत अच्छा लर्निंग हुआ फ्रॉम बोथ ऑफ यू, फ्रॉम अनुपम एज वेल एज अमिताभ भैया. And one thing which I'll I'm going to take back, ये हम पहले भी आप ही के मुंह से सुने थे and दिमाग में था, लेकिन I think this I need to kind of bring it in my narrative also, ताकि लोगों को बताएं the thing that कि जो हम लोग जो हमारा कॉस्ट है, कोई भी चीज का कॉस्ट है, एक साड़ी जो बन रहा है यहाँ पर 1000 रुपए की लिनन की साड़ी बन रही है, 2000 की लिनन की साड़ी बन रही है, तो असल में the cost of that whole sari is highly undervalued because we are transferring the cost, वो externality के form में वो हमारे reverse में जा रही है, हमारी चंपा में जा रही है actually. So it is highly undervalued. So ये वाली जो चीज है ना, ये मतलब दिमाग में था. And last time when I met you in Germany only, उसी टाइम पे आप हमको ये बताए थे and I really thought कि इसको, लेकिन अब हमको लगता है कि इसको aggressively यहाँ पर दिमाग में डालना चाहिए लोगों को. आप देखिए, फर को शेम किया गया था, फर पहनना को शेम किया गया था. Why I'm not saying कि फर के लिए जानवर को मारना चाहिए या नहीं, हम एकदम एंटी हैं. और हम एक और बात हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोले एक नदी को आप मार सकते हैं लेकिन एक जानवर को नहीं मार सकते हैं. तो नदी में जो उतना बायोडाइवर्सिटी था, सबको खत्म कर दिया आप रंग करने में. तो फर्क का जो शेम है, वही शेम होना चाहिए एक तसर की साड़ी में. एब्सोल्युटली एग्जैक्ट वही शेम होना चाहिए. उसी तरह का मिलिटेंसी लाना पड़ेगा. सिविल रॉन्ग वर्ड, ओके, चॉइस ऑफ वर्ड रॉन्ग हो रहा है, बट यू नो व्हाट आई मीन. यू विल हैव टू बी एंड एग्जैक्टली. अब जैसे अनुपम बोल रहे थे ना कि सिविल से डायलॉग हो रहा है काउंसिल का, उसी तरह डायलॉग होना पड़ेगा. बोलना पड़ेगा कि आप नहीं पहन सकती हैं साड़ी. मिनिस्टर को बोलना पड़ेगा, आप सॉरी, यू कैन नॉट डू दैट अंटिल इट्स सर्टिफाइड. You cannot wear this साड़ी. आप फर पहन रही हैं, करेक्ट, फर पहन रही हैं. हम नहीं भेजे आज तक. मेरा वो साकेत बोलता रहा, अभी खैर अब तो हार मान गया है, वो भेज रहा है कि स्मृति ईरानी को भेजेंगे. बोला हम नहीं भेजेंगे. And not because no disrespect. Don't get me wrong. No, it's not matter of individual. It's not about. It's just वही जो नारायण जी कह रहे थे. It's more about low involvement, gullibility that we all develop. I have the same gullibility in other matters. In coffee, perhaps. In cheese, I don't know. But that's what I'm saying. You should not. आपको हिचकना नहीं होगा वॉइस रेज करने में कि आपका साड़ी जो है मेरी नदी को खराब कर रहा है. एंड फ्रैंकली हमको उतना चंपा से लगाव नहीं जितना आपको है. हम आपसे बोरो कर रहे हैं वो इमोशन. वेकेरियस इमोशन है मेरा डायरेक्ट इमोशन नहीं है. आई विल बी ऑनेस्ट. जब से आप बोली हैं तभी से मेरा दिमाग गया. आते जाते कितना देखे हैं, फोटो बहुत लिए हैं, लेकिन हम आई नेवर थॉट इन द मैनर दैट यू थॉट कि उसको ना इम्बॉडी करके, उसको एक पर्सनिफाई करके, उसका जो अफेक्शन है आप जो किए हैं वो नहीं था मेरे अंदर. वो अपने आप से आता नहीं है. कई बार मेरे अंदर नहीं आया था. हम तो नदी, हमको डर लगता था जब भी पुल क्रॉस करते थे, अपना डर लगता था कि जरा गिर नहीं जाए. दैट्स इट. But you evoke that emotion in me. You evoke and once you have evoked that, and I'm like, okay, that's how I saw the externality.
Your river has been killed. And that you must raise every time somebody says, and you say, ultimately, that's the price you will have to pay. I agree with you. Sorry, I got emotional here. 2 days from now, we are going to have a session on the legal compliances, basically related to the river. And I am going to use this point क्योंकि हम लोग उसका जितना भी हम लोग workout करना चाहते हैं कि what is it that should be done to take a legal action against people or even the government, the local administration, if they are doing something wrong to the river. उसमें अगर डंप्स हो रहा है, अगर उसमें इवन जो एफ्लुएंट्स जा रहे हैं और उसको अगर रोका नहीं जा रहा है, तो हाउ इज द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल, उसका हम लोग हर लीगल एंगल से समझने की कोशिश करेंगे एंड व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, वो इसी तरह के फोरम में हम लोग समझेंगे एंड देन वी आर गोइंग अहेड विद दैट आल्सो. अभी पिछले साल तुम कर दी होती ये वाला काम, तो हम भी पार्टी बन गए होते, जर्मन बन गए, अब तो हम तो जर्मन बन गए, अब तो पार्टी नहीं बन सकते, नहीं तो हम तो पक्का हम तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, would have even contributed to it. That's exactly what I've been thinking. I think you should. I think you should take this lead. Absolutely. आपको लेना पड़े. आप एक तरह आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हैं सिर्फ एक नदी बचाने के लिए. मतलब सिर्फ is the wrong, you know, सिर्फ एक नदी बचाने के लिए. तो आपको तो whatever is possible you should. Yes, absolutely. Whatever is possible you should. आप जो गमछा में इन्वॉल्व है, अनुपम को जो समीर हैं जो वर्ल्ड बैंक में, उनका छोटा भाई इज साकेत, he's my one of my best friends, बचपन के दोस्त हैं हम लोग, और साकेत runs a law firm, Phoenix Legal, इंडिया का one of the leading firms में से है, 60 lawyers, 60-70 lawyers, 10-15 partners. अगर आपको लगता है कि मतलब he can be got involved in it, I'll be happy to write to him and say कि तुमको एक और प्रो बोनो काम करने बोल रहे हैं. हमसे तो खाली प्रो बोनो काम मिलता है, बट ठीक है. No, I'll be happy to. I mean, I'm sure Anupam will tell you the same. Sorry, I'm presumption कर रहा हूँ यहाँ पे, but no. Absolutely. Because externalities है, you know, मतलब नदी पूरा बर्बाद कर रहे हैं आप, you know, and people are not even aware, care भी नहीं कर रहे हैं. Yeah, actually, some of the rivers have been granted legal rights. ये इक्वाडोर से शुरू हुआ था और अब तो शायद इंडिया में भी दे दिया एक, आई थिंक उत्तराखंड या नैनीताल हाई कोर्ट ने. गंगा नदी को दिया गया है, गंगा नदी और यमुना को दोनों को दिया गया है, एंड आई थिंक नाउ नर्मदा आल्सो. बट ये 1978 के आसपास पहली बार इक्वाडोर में शुरू किया और फिर कोलंबिया में रिवर है, तो बहुत सारे रिवर्स को मिल गया है और अभी 30-40 साल हो गए इस कॉन्सेप्ट को, and lot has changed because of that. इंडिया में पता नहीं अभी, मतलब गंगा को देख के लगता तो नहीं कि कुछ फर्क पड़ा है. नहीं, गंगा का तो आपको वीडियो दिखाएंगे तो आप तो मतलब बोलिएगा कि I mean, I basically, to be quite honest, Bhagalpur journey to Bhagalpur has been heartbreaking for me personally. It's been heartbreaking. But at the same time, when I participate in such conversations, and you're geographically quite far, and I am, but there is a mental connection that you are with these projects, through these projects. There is this awareness. There is this. I mean, I don't know, even if it's skin deep or whatever, it's just vicarious or whatever you call it. It gives me a hope that there are some stakeholders that I can talk to, that these people can talk to, they can engage. तो वो बहुत ज़्यादा heartening होता है मेरे लिए. एक साल हो गया हमको गए हुए इंडिया. लॉन्गेस्ट मेरा भी पिछले 10 साल में लॉन्गेस्ट रहा है ये पीरियड जब हम नहीं गए. कोई प्रोजेक्ट चलने लगा अपने आप से, यहाँ मैनेज कर लेते हैं. अब आप लोगों से बात करके ना बोला कि साला कब खुलेगा एंड हाउ डू आई गो माय प्रोजेक्ट, I want to see that project, I want to feel it. इतना बोले ना आज, तो that energy is back, energy is back and all, and I agree, but it's been heartbreaking. On one level, it's very heartbreaking there. Or there's so much beauty in people,
in everything, you know. And I'm not making a superfluously मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब really I've collected pictures over the years, stories, and I have, you know, if I were a writer or if I were a documentary maker or a photographer, probably I would be, you know, हम उसको कर रहे होते, but वो talent नहीं है उतना, तो obviously that part is, but what I see and mind knows, you know, I know what I have seen, and you know, stories है, छोटे छोटे anecdotes हैं जो मतलब हिला के रख देते हैं, of generosity, of people's generosity, of people's love for life, you know, sheer love for life, sheer being there, you know, and that well, I for example, in my moments of despair, I think of them and I'm like, man, well, you know, मेरा एक friend कहता है कि साले हमको तो lottery ticket मिला हुआ है यार, lottery ticket मिला हुआ है, we already have, like, you know, what else do you want? Lottery ticket है. That is what, you know, go experience. So I'll be more than happy to help you, Rani, in any way. Acha, one question to Anupam. Anupam, is the GEF small grant program under the same thing? वो same चीज है कि वो कुछ और ही है? वो UNDP का है, under Center for Environment and Education वो run कर रहा है. Are these the two same things or different? Yeah, actually, I wanted to tell you about that when you asked me about the engagement of civil society, and then I missed it, and then I thought I would tell you about it later. And I'm glad that you asked. No, it's under it's a GEF program, and it's executed by UNDP, but it's completely independent in a sense that you don't have to go through country like the government side, you know. Okay. So. And yeah, so and I will highly encourage to look into that. और उनका कुछ एलिजिबिलिटी होता है और चेंज करता रहता है, जैसे कुछ ज्योग्राफिक फोकस होता है, जैसे अभी कुछ जगह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चले गए हैं, तो अब है कि भाई उधर नहीं देंगे, बट आई थिंक बिहार माइट बी इन आई डोंट सी लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन बिहार, सो probably that's something to definitely check out, and they have really good documentation and you know details on projects. They are the most active people, and हमारे जो और सब जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में they're very enthusiastic, and rightly so, because they mainly work with civil societies on a small grant, who are very enthusiastic. मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जिस देश में भी गया हूँ मैं, मतलब सबसे आगे वो लोग रहते हैं और सबसे जोश. मेरे पास पिक्चर भी था, वो कोलंबिया वाला जो प्रोजेक्ट था जो दिखाना चाहता था मैं, उसमें वो स्मॉल ग्रांट्स के साथ ही एक बड़े प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट कर दिया. तो इट्स नॉट I mean, what we're trying to demonstrate that when small grants link up to a larger program or a you know project, then it just a force multiplier. And तो कोलंबिया में मैंने देखा एकदम कॉन्फ्लिक्ट एरिया, वहाँ कभी 50 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ कम्युनिस्ट और वो जो है, बट उसमें ये लोग जो ये छोटा ग्रुप है यूथ का, एंड दे जस्ट चेंज द गेम. वो बेनिफिशियरीज थे, and they came forward and they said, no, we don't want to be a beneficiary, we want to be the implementing partners. हम साथ में implement करते हैं. और मतलब amazing में गया, मजा आ गया, और मतलब लंबी कहानी है वहाँ पे, लेकिन it's just amazing to say इतने difficult circumstances में उन लोगों ने काम किया और बहुत बढ़िया काम किया. लेकिन does that give that much of flexibility कि I mean जो beneficiaries थे उनको implementers बनाने में, वो सब मतलब उतनी flexibility है? हाँ, तो स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम का तो यही है ना कि दे कैन इम्प्लीमेंट. आई मीन वो आप अगर किसी नॉन प्रॉफिट को बोलते हैं, कोकम आसिया करके वो जो नॉन प्रॉफिट था, मोस्टली यूथ, अदरवाइज दे वुड हैव बीन यू नो डूइंग समथिंग एल्स, यू नो, पूरा कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, तो यार इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. जैसे छोटा एनजीओ है तो था कि हम करेंगे, हम भी साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे, कम्युनिटी फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, तो वो कर पाए, वो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. Okay, good. I think I'll explore that. Yeah. All right, so it was such an interesting conversation, and Fantastic. we'll come to an end now, and if you guys don't mind, we'll connect through emails and all. I'll connect you to each other, and maybe on Facebook. Absolutely. And all. Amitabh Bhaiya, are you there on FB? No, you're not. Sorry, if I'm there on?
No, I am Oh, you not there. are? Actually. I am I, and I don't think so. अगर No, हुआ भी no. होगा तो कुछ 15 साल पुराना प्रोफाइल होगा. अच्छा 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 अच्छा. I'm not there. I'm not there because my Okay. father is there, so I'm not there. Yeah, yeah. I get that. Very simple, you know. So I'm not there. My wife is there to spy on everybody and. Okay, thank you so much to both the speakers and for all the learnings that we got. And we'll keep on, people will Please. keep on returning to both Yes. of you for No worries at all. advices and You know, Anupam, I mean, he's a busy professional. I have some time on my hand, so you know, I'll be happy to do that, and I'm sure he would be. all right. Thank you would be so more than much, happy. everyone. बाय द वे सर, कल हमारा सेशन जो है ना वो नेचुरल डाई पर ही है, तो कल थोड़ा मुश्किल है मेरा आना. कल थोड़ा मुश्किल है. Tomorrow लेकिन there's a आप लोग session with 3 people talking on natural dye. एक है गोवा में कलर आश्रम करके है, कलर आश्रम फाउंडेशन is there. They are working on मेरा natural dye. इंडिगो गोवा से ही आता था. Acha. And the other organization would be somebody from Calcutta. There is Eco Environment एक है जो कि they are doing colors, natural dyes. तो वो वहाँ से आ रहे हैं. And the third one is Shubh Kamini from my team. She is interested in color dyeing. और वो अपने छोटे level पे she is using a lot of things. Why doesn't she? Is she in Bhagalpur? Are you in Bhagalpur, Shubh Kamini? हाँ, she's in Bhagalpur. She's with people. तो आप तो फिर आप जाइए ना, थोड़ा फैक्ट्री में देख लीजिए हम लोगों का, मतलब देख लीजिए. सर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो तो बेचारा अभी जो तो है मैं वो करता खुद है ही टाइम सीख ना रही हूँ, जिंदगी मैं में. एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. अरे तो वो जो शत्रुघ्न है ना, शत्रुघ्न तो बेचारा, he is a walk-in employee. You guys carry he on. walked into us. He said he will do anything, and we hired him because he said he will do anything. So tata. वैसे रानी दी के साथ हम गए थे आपके फैक्ट्री, वो एसटीपी वाला आप प्रोजेक्ट के गए लिए थे बोला क्या? था. हाँ हाँ, वो एसटीपी वाला प्रोजेक्ट जो बोला था ना, नाला वाला प्रोजेक्ट के लिए, तो हमने वो किया था. हाँ हाँ, तो हमने सब देखा है और काफी अच्छा लगा. और अभी तो हम बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कलर्स पे, लाइक कि अगर ऑनियन तो वहां पे हम लोग का शुरुआत एक्सपेरिमेंट से ही हुआ था. हम लोग का सब चीज. तो जो लड़का वहाँ करता है ना, शत्रुघ्न, तो वो शत्रुघ्न वाज नॉट पार्ट ऑफ, ही डिडंट नो मच अबाउट डाइंग. इनफैक्ट अगर पॉसिबल हो सकता था तो आई वुड हैव आस्क्ड हिम टू जॉइन, यू नो. और उसकी वाइफ का तबीयत खराब है, वो कल अवेलेबल हुआ कि नहीं पता नहीं, बट अगर आप, इफ यू डोंट माइंड, आई मीन आपको हम उसका नंबर दे देते हैं, आप लोगों को कनेक्ट कर देंगे, आप उससे बात कर लीजिए. हाँ सर, पक्का. क्योंकि उसको सीखने का बहुत है, वो बहुत अच्छा डाइंग कर रहा है, आई विल टेल यू. हाँ, वो बहुत अच्छा डाइंग कर रहा है. और ये जो कलर आश्रम वाला है ना, तो उन लोगों ने वर्कशॉप कराया था. हम 1 महीने के लिए गोवा में थे, तो उन्हें सिखाया. फिर हमने वर्कशॉप किया भी लोगों से. वहाँ पे एक इवेंट हो रहा था, तो हम उनकी तरफ से वॉलंटियर कर रहे थे. तो उनसे ही जितना कुछ सीखा था ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. और फिर रानी दी से भी जुड़े रहने की वजह से, कि चंपा के लिए से कर रहे हैं, और यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री भी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है. और अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बस. नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए ना. वहाँ पे 6, 7, 8 डाई स्टफ है. इनफैक्ट आई विल टेल यू समथिंग, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस. आप कल अपना कॉल कर लीजिए, ठीक है? रानी मैम से आप कांटेक्ट ले लीजिए मेरा, और उसके बाद ना वी कैन फिगर समथिंग आउट. तो मेरा वहाँ पे प्लान है एक डाइंग यूनिट बनाने का, छोटा सा. ठीक है, डाइंग यूनिट बनाने का, और नेचुरल डाइज को कैसे हम और आगे बढ़ाने का मेरा वहाँ प्लान है. तो वी कैन टॉक अबाउट इट. आप जाके, बिकॉज आपका जो स्ट्रक्चर होगा ना, क्योंकि शत्रुघ्न बहुत पढ़ा लिखा तो है नहीं, वो तो बेचारा है ना, तो उसको तो हम वो तो अपने आप ट्रेन कर लिया, बट उसको ना एक बॉडी बनाना नॉलेज का, कि कैसे प्रोसेस होगा, चार्ट्स बना के रखना, वो उतना नहीं कर पाता है वो. ओके. ये सब आप उसको हेल्प कर सकते हैं. हाँ, है ना. तो हम रानी मैम से भी बात कर लेंगे. आई मीन वी कैन हायर यू प्रोफेशनली थोड़े दिन के लिए. आप उसको यू कैन डू इट. मतलब हम लोग के पास बजट भी है. हम लोग तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, थोड़ा बहुत पैसा रहता है, तो
थोड़ा बहुत पैसा तो दे सकते हैं। तो यू कैन लर्न, वहाँ पे हम लोग का थोड़ा काम भी कर दीजिएगा, देख भी दीजिएगा और हो भी जाएगा। हाँ सर, आई विल बी हैप्पी। हम्म, ओके सर। है ना? ठीक है, तो आप ईमेल लेके आप कर लीजिए, ठीक है? ठीक है टेक सर। केयर। थैंक यू सर। बाय।